मैम कितने मेंबर्स आ गए अभी? टंडन सर 13 मेंबर्स आ गए अभी, ज्वाइन होते रहेंगे अभी। तो 2-3 हम मिनट स्टार्ट करते हैं वेबिनार। ठीक है 2 सर। मिनट। Hello everyone. Again, this virtual meeting has brought us together. I, Chairperson Muradabad Branch CA Mani Gupta, welcomes you all in today's webinar. I also welcome all the dignitaries present over here. Very warm welcome to all. Today your we voice is have not with clear. us CA Gaurav Gupta sir as our guest of honor, CA Rakesh Arya sir, our senior most member and a good speaker on income tax of Muradabad. के बहुत अच्छे स्पीकर है हमारे राकेश आर्य सर. We have KM Tandon sir and our speaker CA Rajesh Mehta ji. He is a renowned, knowledgeable and experienced speaker, and he has been the chairman not of the branch but of AIFTPA, All India Federation of Tax Practitioners. Welcome, sir. Before taking the meeting forward, I would like Sharad ji to play the video of CA Gaurav Gupta. Sharad ji? Yes, I'm doing. राजेश मेहता सर, हमारी एक ट्रेंड रहा है मुरादाबाद ब्रांच का कि हमारे जो पास्ट चेयरमैन होते हैं हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं और उनके पास जाके उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं. तो इस बार श्री गौरव गुप्ता जी का टर्न था, तो हमने उन्हें फैसिलिटेट किया और उनकी ब्लेसिंग्स ली. वो हमारे साथ भी हैं इस समय. गौरव सर. गौरव सर. थैंक यू मनी फॉर ऑनरिंग मी. एंड ये बहुत अच्छा ट्रेंड एक स्टार्ट किया था आपकी टीम ने, एंड थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत अच्छा मैंने उस दिन फील किया कि आपने सभी लोगों को बहुत एनकरेज भी कर रहे हैं, और आगे भी जितने भी लोग आएंगे वो उन लोगों को भी एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ब्रांच बहुत अच्छा कर रही है. और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि मनी ने बीइंग फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट चेयर वुमेन, अगर मैं बोलूं कि जो है मुरादाबाद से हैं, शी इज एक्टिवली वर्किंग और बहुत अच्छा कर रही है. और अच्छा लगता है कि अब मुरादाबाद ब्रांच यंग मेंबर्स के हाथों में है और बहुत अच्छा लगता है मुझे. Thank you. All the best, Mani, for your team and for your further programs and virtual meetings. All the Thank you, best. sir. Thank Thank you you. so much. हाँ, ये बुरा हो रहा है. Shawl. Thank you. Now, without wasting much of the time, और हमारे इस टेन्योर का यही उद्देश्य है कि स्पीकर को सबसे से ज्यादा टाइम मिलना चाहिए ताकि हम उनकी नॉलेज गेन कर सकें. तो मूविंग फॉरवर्ड, मैं राजेश मेहता सर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ. वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बट हमें उन्हें इनसे सुनना ज्यादा चाहेंगे. तो मैं बताती हूँ. राजेश मेहता सर इज प्रैक्टिसिंग सिंस 1996. He is a speaker on many issues of capital gains, search and seizure penalties, HRF, religious and charitable trust, etc. He has received awards and in debate competitions and award by the Chief Minister of Rajasthan, Shri Hari Dev Joshi ji, and many other awards he has received. His articles and views on income tax are frequently being published in tax newsletters, magazines, and online tax forums. He has also regularly sent suggestions to the Finance Ministry, many of which are incorporated in the budget proposals and circulars from time to time. Presently, he is the National Vice President of AIFTP, held position of chairman at AIFTP in the year 2018 and 2019. Now I would like Rajesh Mehta sir to please show your knowledge on all the members of Muradabad branch. Please, sir. Thank you, madam. I am much thankful to CA Mani Gupta ji
chairperson of Muradabad CA branch, CA Gaurav Gupta ji, KM Tandon Sahab, Rakesh Arya ji, and all the chartered accountants from Muradabad CA branch. Today I am given an opportunity to discuss the recent amendments introduced through Finance Act 2021. Just I am sharing my screen. Yes, my screen is visible. Yes, sir, it's visible. Sir, can I interrupt you in between? एक छोटा सा announcement करना था, sir. Can I interrupt you? Yes, yes. It's a request to all the members कि आप जब भी आप चैट पे अपना नाम के साथ साथ ही अपना मेंबरशिप नंबर लिखें, क्योंकि आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि हमारी अटेंडेंस नहीं लग पा रही है। तो आप बहुत ध्यान रखिए कि अपने नाम के आगे अंडरस्कोर लगा के अपना मेंबरशिप नंबर लिखें और कुछ नहीं लिखें उस पे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है मेंबर्स? ओके, थैंक यू सर। So the first thing which I would like to discuss here is the now with this budget, the government has stated that goodwill is not a depreciable asset. So with effect from assessment year 2021-22 itself, उन्होंने ये बोल दिया है कि गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसलिए अब सेक्शन 2 क्लॉज 11 में गुडविल को इंटेंजिबल एसेट नहीं माना गया है, और सेक्शन 32 में भी उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि नाउ देयर विल नॉट बी एनी डेप्रिसिएशन ऑन द गुडविल। अगर पिछले वर्षों में जो भी गुडविल पर डेप्रिसिएशन ले लिया है, वो डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद जो भी WDV बची उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके आगे एज इट इज ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। भविष्य में जब कभी भी गुडविल को सेल किया जाएगा तब उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आधार पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 50 में कैलकुलेट किया जाएगा। स्लम्प सेल सेक्शन 2 क्लॉज 42C। स्लम्प सेल में अभी तक ओनली सेल, ट्रांसफर और सेल दोनों को डिफरेंट नहीं माना था। उन्होंने लिखा था स्लम्प सेल में, अर्लियर ट्रांसफर एज ए रिजल्ट ऑफ सेल वाज ओनली कवर्ड। मतलब कोई व्यक्ति ने अगर अपनी बिजनेस अंडरटेकिंग को एज इट इज सेल किया है तो उसे स्लम्प सेल माना जाता था, और ओनली वो ही टैक्सेशन में कवर्ड होता था। सेक्शन 50B में ओनली वही कवर्ड होता था। अगर किसी ने अपना बिजनेस अंडरटेकिंग सेल किया और जिसको उन्होंने सेल किया उन्होंने उसके बदले में उन्होंने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो अगर शेयर अलॉट किए तो इट वाज नॉट ए सेल। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस में इनकम टैक्स नहीं लगता था। So it was out of purview of the capital gain also. तो उस लूप होल को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर से ही, पिछले असेसमेंट ईयर मींस असेसमेंट ईयर 21-22 से ही उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया कि नाउ इट विल कवर ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दी है उसके अंदर उन्होंने एक्सचेंज भी कवर्ड किया है, आपके एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स को भी कवर्ड किया है। तो ट्रांसफर की जो वाइड डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दी है उसको इन्होंने 2 क्लॉज 42C में कवर कर दिया। सो अगर किसी ने अपनी कोई बिजनेस अंडरटेकिंग को सेल किया है या सेल के बजाय उन्हें शेयर्स अलॉट हो गए, शेयर्स के बदले में कोई दूसरी चीज अलॉट हो गई है, कोई एक्सचेंज कर लिया है, ऑल दीज विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 50B। 50B में फिर एक और लूप होल था, उस लूप होल को भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। पहले 50B के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, इसलिए केवल नेटवर्थ जो अंडरटेकिंग सेल किया जाता था उस अंडरटेकिंग की जो नेटवर्थ थी उसी को सेल वैल्यू माना जाता था। तो उसमें ओनली बुक वैल्यू पर ही कोई भी एसेट ट्रांसफर हो जाती थी। तो अगर किसी व्यक्ति की बिजनेस अंडरटेकिंग में मान लिया कोई शॉप है, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, उसकी अगर 50C के अनुसार वैल्यू बहुत ज्यादा है
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है किंतु ट्रांजैक्शन वैल्यू कम है, इवन दो दैट वाज आउट ऑफ परव्यू ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स एज पर सेक्शन 50C. सो नाउ एज पर सेक्शन 50B सब सेक्शन 2 में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट डिटरमाइन किया जाएगा. उसके लिए रूल स्पेसिफाई किया जाएगा कि कैपिटल एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाएगा. दैट रूल विल बी नोटिफाइड इन द फोर्थकमिंग डेज. पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर पहले ये मोस्टली ये होता था कि अगर पार्टनर्स का कोई शेयर का रेशियो चेंज हो गया या पार्टनर्स को कोई एसेट फर्म के डिसोल्यूशन पर उसकी कैपिटल में से कोई पैसा दिया गया तो भी उसे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था. पार्टनर एक पार्टनर मान लिया 4 पार्टनर, एक पार्टनर बाहर हो गया, उसकी पार्टनर की कैपिटल थी पहले 10 लाख रुपए, उसके बदले में उसे 50 लाख रुपए दिए तो भी वह कैपिटल गेन के दायरे से बाहर था. सो नाउ उन्होंने सेक्शन 9B और सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, ये 45 सबसेक्शन 4 पहले भी था उसे उन्होंने चेंज कर दिया और 9B नया इंट्रोड्यूस किया है. उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई कैपिटल एसेट प्राप्त होती है या कोई स्टॉक इन ट्रेड प्राप्त होता है तो कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड से जो फर्म को गेन होगा उसे फर्म का कैपिटल गेन माना जाएगा और स्टॉक इन ट्रेड से जो फर्म को इनकम होगी वो फर्म का बिजनेस इनकम माना जाएगा. Change in reconstitution of the firm will also be treated as इससे भी कोई कैपिटल गेन अराइज होगा. अगर मान लिया कोई एक नया पार्टनर आ गया तो जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर से उनका शेयर रेशियो चेंज हो जाता है, या जो पुराने पार्टनर्स चल रहे हैं 4 पार्टनर्स से उनका पहले रेशियो 25% ईच था, उन्होंने आपस में कोई रेशियो ही चेंज कर लिया. रेशियो चेंज करने से उनका फर्म की जो कैपिटल एसेट है फर्म के स्टॉक इन ट्रेड में राइट्स चेंज हो जाते हैं. तो स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट में जो राइट्स चेंज हो जाते हैं उसके कारण से जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा उसका रूल के अनुसार कैलकुलेशन किया जाएगा और उस कैपिटल गेन और स्टॉक इन ट्रेड के गेन होने से जो भी बिजनेस इनकम जनरेट होगी उस पर टैक्स फर्म को देना होगा. 45 सबसेक्शन 4, कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड के अलावा कोई भी फर्म के द्वारा अगर किसी पार्टनर को कोई पैसा दिया जाता, मान लिया पार्टनर की फर्म में कैपिटल पहले 10 लाख रुपए थी, जब फर्म डिसॉल्व हो गई या पार्टनर अपनी कैपिटल से पार्टनर ने अपना रेशियो लेके बाहर हो गया, 4 में से एक पार्टनर फर्म से बाहर चला गया तो उस पार्टनर को 10 लाख के बदले में 40 लाख रुपए प्राप्त हुए. तो जो कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड का जो रेशियो था उसके अलावा भी अगर उससे ओवर एंड अबव भी कुछ अमाउंट मिला है तो उसे फर्म की इनकम माना जाएगा. मान लिया उसे स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट में 20 लाख रुपए मिले तो 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल ऑलरेडी डिपॉजिट थी, तो 20 लाख पर तो फर्म ने कैपिटल गेन और स्टॉक इन ट्रेड पे बिजनेस इनकम में टैक्स दे दिया, किंतु इसके अलावा 10 लाख रुपए और मिले तो अगर वो 10 लाख रुपए कैपिटल एसेट के अगेंस्ट में है तो वो जो 10 लाख रुपए कैपिटल एसेट के अगेंस्ट में है उसे फर्म पर उस अमाउंट पर फर्म को कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा. तो यह भी फर्म की इनकम मानी जाएगी. तो इस तरह से पहले जो भी पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते थे, मोस्टली रियल एस्टेट वाली पार्टनरशिप फर्म्स में ये ज्यादा होता था कि 4 पार्टनर हैं, पार्टनर अपना रियल एस्टेट का अगर कैपिटल गेन बचाना चाहता है तो एक पार्टनर बाहर हो जाता था, नया पार्टनर आ जाता था तो फर्म को कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी से बच जाते थे. तो नाउ दीज थिंग्स आर कवर्ड बाय दिस 9B एंड 545 सबसेक्शन 4. यूलिप पॉलिसीज में अगर ईयरली 2.5 लाख से ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति कंट्रीब्यूशन करेगा तो 2.5 लाख से अधिक का जो कंट्रीब्यूशन करेगा उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी टैक्सेबल. प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन में भी उन्होंने ये चेंज किया है कि 2.5 लाख से अधिक का ईयरली कंट्रीब्यूशन अगर कोई व्यक्ति करता है तो अधिक जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उससे रिलेटेड जो ब्याज प्राप्त होगा दैट विल बी टैक्सेबल. किंतु अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय खुद करता है तो 5 लाख रुपए पर ईयर से अधिक वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा ओनली उसी का ब्याज टैक्सेबल होगा. ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल, उनकी ग्रॉस रिसिप्ट पर ईयर 1 करोड़ से कम अगर होती है तो उन्हें इनकम टैक्स में
फॉर्म नंबर 56D में पहले रजिस्ट्रेशन लेना होता था, 1023C क्लॉज 6 और 6A में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता था, किंतु उस लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर अब उन्होंने 5 करोड़ कर दिया है। किंतु पहले यह चेंज था कि पहले अगर मान लिया कोई एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, उस पेरेंट इंस्टीट्यूशन के अंडर में 10 अलग अलग यूनिवर्सिटी चल रही है, या 10 अलग अलग हॉस्पिटल चल रहे हैं, या 10 अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, तो हर इंस्टीट्यूशन को 1 करोड़ का एग्जेम्पशन अलाउ था। तो इस तरह से एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन को 10 करोड़ तक की ग्रॉस रिसिप्ट पर भी सेक्शन 1023C क्लॉज 6 और 6A में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब उन्होंने कह दिया कि आपकी सारी इंस्टीट्यूशंस की ग्रॉस रिसिप्ट को एग्रीगेट किया जाएगा। अगर एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन के अंडर में 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उन सभी की एग्रीगेट रिसिप्ट्स मिलाकर 6 करोड़ रुपए है, then they are required to get themselves registered under section 1023C clause 6 और 6A। हॉस्पिटल्स वगैरह या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर उनकी एग्रीगेट रिसिप्ट 5 करोड़ से कम है तो उन्हें किसी भी तरह की कोई इनकम टैक्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो नया सिस्टम अभी चालू हुआ है या पुराना जो सिस्टम था उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कॉर्पस डोनेशन, मोस्ट ऑफ द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट में पहले कॉर्पस डोनेशन जो प्राप्त होता था, कॉर्पस डोनेशन इज ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11(1)(d। कॉर्पस डोनेशन को लेकर के कई सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते थे, मान लिया किसी को 1 करोड़ का कॉर्पस डोनेशन प्राप्त हुआ, उस 1 करोड़ के डोनेशन को उस इंस्टीट्यूशन ने वापस से किसी को एप्लीकेशन ऑफ इनकम में यूटिलाइज कर लिया। इधर कॉर्पस डोनेशन सेक्शन 11(1)(d) में एग्जेम्प्टेड है, फिर उसको उन्होंने उसके बदले में उन्होंने मान लिया स्कूल बिल्डिंग बना लिया, तो उसे उन्होंने कहा साहब हमारा ये 1 करोड़ रुपीज इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। फिर ये 1 करोड़ एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो गया, जो वॉलंटरी डोनेशन आया था 1 करोड़ का, उस 1 करोड़ को उन्होंने एफडी कर दिया, उस एफडी को उन्होंने 2-4 साल बाद खर्च कर दिया। तो ऐसा डबल एप्लीकेशन ऑफ इनकम वो लोग यूज कर सकते थे पहले, तो अब नाउ दे हैव ब्लॉक्ड दिस वे। अब उन्होंने कहा है कि कॉर्पस डोनेशन जब भी आपको प्राप्त होगा उससे आपको सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताए गए हैं उसी ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना आवश्यक होगा, और वहां से अगर आपने कभी भी कोई पैसे को खर्च किया that will not be treated as an application of income। किंतु मान लिया जैसे 1 करोड़ रुपए किसी ट्रस्ट को प्राप्त हुआ, उसमें से उन्होंने 1 करोड़ रुपया स्कूल में लगा दिया, उससे 1 करोड़ जो स्कूल बिल्डिंग में लगाया that will not be treated as an application of income। किंतु आने वाले 4-5 सालों में वापस उस स्कूल ने क्या किया कि 20-20 लाख रुपए पर ईयर जब उन्हें भविष्य में डोनेशन प्राप्त हुआ, वो 20-20 लाख रुपए वापस उन्होंने उस कॉर्पस के सामने, कॉर्पस के अगेंस्ट सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर दिया एवरी ईयर 20 लाख। तो एवरी ईयर जो उन्होंने 11(5) में जो इन्वेस्टमेंट्स वापस उन्होंने लेवल में कॉर्पस डोनेशन को लेवल में लाने के लिए हर साल जो 20-20 लाख रुपए 11(5) में इन्वेस्टमेंट कर दिया, नाउ दैट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ताकि किसी को अब डबल छूट नहीं मिलेगी। अन्यथा कॉर्पस डोनेशन को भी लोग एग्जेम्प्टेड ले लेते थे और उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम भी मान लेते थे। लोन और बोरोइंग, इसी प्रकार जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मान लिया किसी बैंक से लोन लिया, कोई स्कूल रन कर रहा है या कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, उन्होंने स्कूल बसेस के लिए कोई लोन लिया, उस लोन को लेकर के उन्होंने उससे बसेस परचेस कर ली, तो जो लोन लिया उसको तो अपनी इनकम में स्कूल से शो नहीं करते हैं, किंतु लोन के पैसे से जो उन्होंने बसेस परचेस किए उस बस परचेस को एप्लीकेशन ऑफ इनकम बता देते हैं, जबकि स्कूल ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन ऑफ इनकम कुछ भी नहीं किया, लोन में से बस परचेस की है। फिर जब वो स्कूल लोन रीपेमेंट करता है तो उस लोन रीपेमेंट को भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम बता देता है, तो एक ही अमाउंट पर डबल डिडक्शन लिया जा रहा था, तो उसको ब्लॉक करने के लिए अब उन्होंने ये प्रोविजन कर दिया है कि अगर आपने लोन में से कोई भी एक्सपेंसेस किया उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, किंतु जब भी आपने लोन का रीपेमेंट किया है एवरी टाइम रीपेमेंट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम।
मान लिया बस का लोन लिया है, उस लोन को आपने आने वाले 5 सालों में रीपेमेंट किया है, तो एवरी ईयर जो भी अमाउंट आपने लोन का रीपेमेंट किया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। नो सेट ऑफ लॉस टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस। कई सारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस में कभी क्या होता है कि मान लिया पिछले वर्ष के अंदर इंस्टीट्यूशन ने कुछ पैसा ज्यादा खर्च कर दिया। ज्यादा खर्च कहाँ से किया? कॉर्पस में से ही करते थे मोस्टली, क्योंकि करंट ईयर की इनकम में से तो 85% खर्च करना वैसे भी जरूरी है। नहीं किया तो आपको अलग से एफडी में रखना है। तो फिर ज्यादा खर्च करने का पैसा आया कहाँ से? तो कॉर्पस में से आ गया, या कोई एग्जेम्प्टेड इनकम में से कोई पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके कारण से आपको लॉस हो गया। या करंट ईयर में आपके पास इनकम कम हुई, खर्च ज्यादा हो गया। तो खर्च ज्यादा हो गया तो उससे आने वाले वर्षों में कई सारे जजमेंट थे ऐसे, देयर वर सो मेनी जजमेंट, कि अगर किसी भी ट्रस्ट ने पिछले वर्षों में अपनी इनकम में से ज्यादा खर्च कर दिया है तो उसे सब्सिक्वेंट ईयर की इनकम में से सेट ऑफ किया जा सकेगा। अर्थात पिछले वर्षों का एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम को सब्सिक्वेंट ईयर में सेट ऑफ किया जा सकता है। मान लिया असेसमेंट ईयर 2020-21 में किसी ट्रस्ट की रिसिप्ट थी 50 लाख रुपए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ रुपए का, तो 50 लाख रुपए लास्ट ईयर ज्यादा खर्च कर दिया। अब इनकम तो कम थी, 50 लाख ही थी, खर्च 1 करोड़ हो गया। तो 50 लाख जो ज्यादा खर्च हो गया उसको असेसमेंट ईयर 21-22 के आईटीआर में वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन अपनी इनकम में से माइनस कर सकता है। मान लिया असेसमेंट ईयर 21-22 में उनको 2 करोड़ रुपए का इनकम हुई, 2 करोड़ में से उन्होंने खर्च केवल 1 करोड़ ही किया, तो जो पिछले साल 50 लाख रुपए एक्सेस खर्च हो गया था वो भी इस साल की इनकम में से एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। तो केवल बचा हुआ 50 लाख ही उनको टैक्सेबल होगा, या अगर वो 15% से एक्सेस अगर कुछ उनके पास सरप्लस बचता है उसे वो आने वाले 5 साल के लिए एफडी कर देते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू, तो वो भी अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो उस चीज को उन्होंने अब ये कह दिया है कि अगर आपने पिछले वर्षों में कोई ज्यादा खर्च किया उसे सब्सिक्वेंट ईयर का एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। यह छूट मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 के रिटर्न्स हम इस वर्ष फाइल करेंगे, इस ईयर तक तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किंतु इसके बाद वाले सालों में नाउ वी विल नॉट बी अलाउड। तो जो असेसमेंट ईयर 21-22 में अगर आपके किसी क्लाइंट का आईटीआर आप फाइल करेंगे, उसमें अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो गया, मान लिया उनकी ग्रॉस रिसीव 50 लाख है, उन्होंने खर्च 1 करोड़ कर दिया, तो जो 50 लाख का एक्सेस खर्च उन्होंने कर दिया है उसे आने वाले वर्षों के इनकम में सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। एलटीसी के लिए लास्ट ईयर ही नवंबर में यह प्रोविजन लाया गया था सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, कि जिनको भी एलटीसी एलटीए मिलता है, वो चूंकि लास्ट ईयर कोविड पेंडेमिक के कारण बाहर नहीं जा पा रहे थे लोग, तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग अगर एक्सपेंसेस कर देते हैं, कोई भी सर्विसेज या गुड्स परचेज कर लेते हैं, तो पर फैमिली मेंबर 36,000 का मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड होगा। जितना वो खर्च करेंगे उसका मैक्सिमम 1/3 अलाउड होगा। मान लिया किसी परिवार में 3 लोग हैं, तीनों ने मिलाकर 1,08,000 रुपए खर्च किए, तो 1,08,000 का 1/3 36,000 रुपए पर पर्सन डिडक्शन उन्हें एलटीसी में मिलेगा। पीएफईएसआई ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को, जो हम टैक्स ऑडिट्स करते हैं और हमारे क्लाइंट्स लोगों की हम रिपोर्टिंग करते हैं, उस रिपोर्टिंग के कारण 3CD के कारण प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 143(1) में किया जाता है। अब इस बजट में उन्होंने एक तरह से क्लैरिफिकेशन दे दिया कि पीएफ, अभी तक कई सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट थे कि अगर पीएफईएसआई इज डिपॉजिटेड टिल द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, देन इट विल बी ट्रीटेड एट पार एज लाइक सेक्शन 43B। जिस तरह 43B में अगर कोई भी टैक्सेस और ड्यूटीज को आप इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक पे कर देते हैं, तो उससे इस ईयर का ही खर्चा मान लिया जाएगा, उसे डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा। तो उस चीज को उन्होंने अब यहाँ क्लियर कर दिया है कि पीएफईएसआई में 43B के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, और पहले भी लागू नहीं होते थे, ऐसा उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि नाउ इट इज क्लेरिफाइड। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉइज से कोई प्रोविडेंट फंड, ईएसआई आदि कोई भी तरह के फंड्स के लिए पैसा कलेक्ट किया जाता है और उस पैसे को उस एक्ट के अंतर्गत जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो भी उसे उसकी इनकम माना जाएगा।
फिर अगर उसे विद इन ड्यू डेट उन्होंने जमा कर दिया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस अलाउएबल अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज रोमन 5A, तो उसे खर्चा माना जाएगा। अगर एसएससी ने उस एक्सपेंसेस को विद इन ड्यू डेट डिपॉजिट नहीं किया, मान लिया प्रोविडेंट फंड जमा करने की लास्ट डेट 15 तारीख होती है, ईएसआई जमा करने की लास्ट डेट 21 तारीख होती है, तो उस ड्यू डेट के भी बाद अगर उसने एक भी दिन लेट जमा किया, तो जो भी एम्प्लॉइज से हमने शेयर कलेक्ट किया है वो एम्प्लॉइज का पूरा शेयर उस एम्प्लॉयर की इनकम मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लोज 24 सब क्लोज 10। तो अभी 3CD में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं कि 3CD में अभी हम डिसअलाउ कितना होगा यह नहीं लिखते, केवल हम रिपोर्टिंग करते हैं कि किस दिन पैसा कलेक्ट किया, किस दिन पैसा डिपॉजिट किया। ओनली उसी के आधार पे 3CD में 143(1) में प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट होकर आ जाता है और डिसअलाउ हो जाता है। फिर अब अगर हमारे एसएससी ने केवल एक भी दिन का डिले किया है, तो भी उसने जो भी पैसा एम्प्लॉय से कलेक्ट किया था, एक भी दिन डिले होने के कारण वो पैसा डिसअलाउ हो गया, उस पर उसे 30% टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन पर। सो जिन लोगों के केसेस पुराने केसेस में अगर किसी में हो गया है, चूंकि इस बजट में उन्होंने कह दिया कि इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट इट वाज नेवर एन अलाउबल एक्सपेंसेस अर्लियर आल्सो, उन्होंने ये बोल दिया कि ये पहले भी कभी अलाउबल एक्सपेंसेस नहीं था और पहले भी ये 43B के समान ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था पहले भी। तो अब क्या पुराने पेंडिंग केसेस भी इसमें कवर्ड हो जाएंगे? तो हाई कोर्ट के जजमेंट का क्या होगा? इन माय ओपिनियन जो पुराने आपके कोई भी केसेस हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 या उसके पहले के, उन केसेस के अंदर आपको अगर 143(1) में कोई प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट होकर आ गया है, देन यू शुड फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस, या आपको पहले 154 करना चाहिए। अगर 154 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उसके अगेंस्ट में आपको अपील फाइल कर देना चाहिए, या आप 143(1) की इंटीमेशन के अगेंस्ट में डायरेक्टली अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करके आप ये बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 143(1) में इस तरह के एडजस्टमेंट डिसअलाउ करने का प्राइमा फेसी अधिकार नहीं था, पहली चीज। दूसरा बात, डिसअलाउ किया उन्होंने, तो हमें जबकि डिसअलाउंस करने का अधिकार, तो डिसअलाउंस कब होगा? जब हम पहले उसको इनकम मानेंगे। तो 3CD में आप देखिए कि सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 में इनकम मानने का तो कहीं ऑप्शन उसमें कॉलम ही नहीं है। तो जब तक रिटर्न फॉर्म में या 3CD में इनकम का ऑप्शन नहीं है, 143(1) में प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। तो पुराने केसेस में आपको जो हाई कोर्ट्स के जजमेंट के आधार पर आप ले सकते हैं, एंड एनी लॉ कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव आल्सो। तो कोई भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव, जनरली सरकार ने बोल रखा है कि हम कोई भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं करेंगे, इसलिए पुराने केसेस में तो आप 43B के जो जजमेंट से रिलेटेड जजमेंट हैं PF ESI के, उन आधार पर यू कैन कंटेस्ट योर केस। एंड फ्यूचर में जरूर से हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे क्लाइंट्स विद इन ड्यू डेट ही PF ESI जमा करें, अन्यथा एक भी दिन का डिले होने पर एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन पर 30% इनकम टैक्स उन्हें चुकाना पड़ सकता है। स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड बाय द बिल्डर, तो अगर उसका सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ से कम है, तो उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 20% तक का वेरिएशन अलाउड है। मान लिया 2 करोड़ रुपए में किसी ने एक कोई फ्लैट सेल किया बिल्डर ने, तो अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ 40 लाख रुपए है, तो भी जो 40 लाख का जो डिफरेंस है उसे 43CA में बिल्डर के लिए इनकम नहीं माना जाएगा। यह लास्ट ईयर बजट में इंट्रोड्यूस, लास्ट ईयर ही एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस चीज को फाइनेंस एक्ट के द्वारा वापस इसमें क्लियरिफाई कर दिया गया है 43CA में, और इसके लिए बिल्डर को ही यह रिलैक्सेशन दिया गया है। और यह रिलैक्सेशन 30 जून 2021 या उसके पहले 12 नवंबर 2020 से बीच में के बाद और 30 जून 2021 तक जो भी इन्वेंट्री सेल की जाएगी उसी पर यह रिलैक्सेशन लागू होगा। यह रिलैक्सेशन केवल रेसिडेंशियल यूनिट पर लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति केवल वेकेंट प्लॉट सेल करता है, ही इज ओनली द कॉलोनाइजर, और कॉलोनाइजर व्यक्ति कोई वेकेंट प्लॉट सेल करता है, उस पर यह प्रोविजन लागू नहीं होगा। दैट शुड बी ए रेसिडेंशियल यूनिट, मतलब वह कोई स्टॉक इन ट्रेड जो भी है, दैट शुड बी ए बंगलो और दैट शुड बी ए फ्लैट। बंगला या फ्लैट होना चाहिए, जो रेसिडेंशियल यूनिट होना जरूरी है, दैट शुड नॉट बी ए वेकेंट प्लॉट। वेकेंट प्लॉट विल नॉट बी अलाउड दिस रिलैक्सेशन।
यह जो 20% का रिलैक्सेशन है ये बायर को भी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में अवेलेबल होगा। 44 ADA 44 ADA फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइनेंस एक्ट 2016 में यह कहा गया था कि एनी इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP विल बी अलाउड 44 ADA। किंतु जब 44 ADA एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने मेमोरेंडम में तो ये बोला था कि इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप अदर देन LLP विल बी अलाउड 44 ADA। किंतु जब 2016 में उन्होंने एक्ट में इंट्रोड्यूस किया तो एक्ट में उन्होंने लिख दिया एनी रेजिडेंट पर्सन। तो एनी रेजिडेंट होने के कारण असेसमेंट ईयर 17-18 से लगाकर कई सारी LLP और इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी 44 AD का बेनिफिट उठा रहे थे। However, intention of the law was not such. तो अब इस बजट में उन्होंने ये चेंज किया, only individual and partnership are allowed to take the advantage of 44 ADA। तो अब HUF हो या कंपनी हो या पार्टनरशिप, HUF कंपनी और LLP को 44 ADA नहीं अवेलेबल होगा। 10 करोड़ up to 10 crore there will not be any requirement for tax audit, but there should be a condition that जो सेल्स है, सेल्स का 5% से अधिक कैश रिसीव्ड नहीं होना चाहिए, या जो पेमेंट से है, पेमेंट्स का 5% से अधिक कैश पेमेंट्स नहीं होना चाहिए। रिसिप्ट्स भी 5% से अधिक कैश अलाउड नहीं है, पेमेंट्स भी 5% से अधिक कैश अलाउड नहीं है। देन ओनली सच assessees will not be required to get their books of accounts audited from the financial year 2020-21। 10 करोड़ तक उन्हें कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। एक क्लेरिफिकेशन और दिया है कि अगर कोई भी असेसी के द्वारा अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी तरह से कोई पेमेंट किया जाता, मान लिया क्रॉस चेक पेमेंट कर दिया, एनी चेक विच इज नॉट एन अकाउंट पे चेक और एनी ड्राफ्ट विच इज नॉट एन अकाउंट पे ड्राफ्ट, that will be treated as a cash। कई सारे लोग अकाउंट पे चेक की बजाय केवल क्रॉस चेक इशू कर देते हैं, उस पर अकाउंट पे नहीं लिखते हैं, तो उस चेक को भी कैश माना जाएगा, उसे अकाउंट पे नहीं माना जाएगा। इसलिए चेक पर या ड्राफ्ट पर अकाउंट पे ही होना ही जरूरी है। अकाउंट पे होगा तभी उसे इस का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कैश ट्रांजैक्शन। 54 GB की जो टाइम लिमिट 31 मार्च 2021 थी, उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया गया है। अगर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची जाती है इंडिविजुअल HUF के द्वारा, तो दैट विल बी, अगर उसे स्टार्टअप में लगा दिया जाता है तो उसके लिए ये सेक्शन 54B का एग्जेम्पशन अलाउड है। EA का डिडक्शन की भी लास्ट डेट जो 31 मार्च 2021 थी, उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया गया है। इसमें सेक्शन 24 में जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, उसके अलावा 1.5 लाख का डिडक्शन 80EA में अलाउड होता है, किंतु स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 45 लाख। और उस असेसी के पास पहले से कोई मकान नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। 80 IAC में जो डिडक्शन पहले 31 मार्च 2021 तक इन्वेस्टमेंट करने पर अलाउड था, वो डिडक्शन 31 मार्च 2022 तक भी अगर एलिजिबल स्टार्टअप कोई चालू कर देता है, दे विल क्वालिफाई अंडर 80 IAC। 80 IBA जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जो डेडलाइन 31 मार्च 2021 थी, उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। इसमें उन्होंने एक चीज और जोड़ दिया, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट की भी को भी 80 IBA में डिडक्शन प्राप्त होगा, और उसके लिए भी उन्होंने 31/3/2022 का सनसेट डेट सेट किया है। 75 ईयर्स से अबव एज की जो भी एसएससी हैं, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, टैक्स तो भरना होगा, किंतु कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 वर्ष या उससे अधिक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के जो रिटर्न्स उन लोगों को फाइल करना है अभी जुलाई 2021 के पहले, अगर उन्हें केवल पेंशन से इनकम है और ब्याज से इनकम है, ब्याज से इनकम केवल एक ही बैंक से होना चाहिए, उसी बैंक अकाउंट में वहां पर उनको पेंशन आती है, वहीं पर उनके सारे FDRs और सेविंग अकाउंट है, तो ही कैन गिव ए डिक्लेरेशन टू दैट बैंकर
वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स की 80C की डिटेल भी उस बैंकर को दे सकता है। बैंकर खुद उसका टैक्स कंप्यूटेशन कर लेगा। टैक्स कंप्यूटेशन करने के बाद बैंकर की लाइबिलिटी है कि बैंकर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टीडीएस रिटर्न के द्वारा रिपोर्टिंग करेगा। सो अंडर सेक्शन 194P उसका जो भी टीडीएस वगैरह काटा जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी देन दैट पर्सन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअली। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, लास्ट ईयर 206C1H इंट्रोड्यूस किया गया था। 206C1H इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जीएसटी में कई सारे फेक इनवॉइसेस चल रहे थे, तो फेक इनवॉइसेस को ट्रैक करने के लिए उन्होंने 206C1H इंट्रोड्यूस किया कि कई सारे लोग गुड्स सेल कर देते हैं पर सेल के बाद में पेमेंट रिसीव नहीं करते बिकॉज दैट इज ओनली द फेक इनवॉइस। तो उन्होंने ये पता करना चाहते थे कि सेल करने से कितने दिनों के अंदर पेमेंट रिसीव होता है, पेमेंट रिसीव होता है या नहीं होता है। अगर होता है तभी तो टीसीएस कलेक्शन होगा 206C1H में। अब इस वर्ष उन्होंने एक चीज और अमेंडमेंट कर दिया कि कई सारे लोग जो परचेस वाले लोग भी बच रहे हैं, तो नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग कि अगर कोई व्यक्ति जिसका पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, वो किसी भी व्यक्ति से एक वर्ष में 50 लाख से अधिक का गुड्स परचेस करता है, तो जो एक्सेस अमाउंट परचेस करता है उस एक्सेस अमाउंट को 0.1% टीडीएस डिडक्शन करना होगा 194Q में। 194Q में टीडीएस अगर कोई व्यक्ति अन्य सेक्शन में भी वो अमाउंट टीडीएस के लिए डिडक्टिबल है, देन देयर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस अंडर 194Q। मान लिया कोई अमाउंट सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर 194C ऑलरेडी है, देन दैट अमाउंट विल अगेन नॉट बी कवर्ड अंडर 194Q। या कोई अमाउंट ऐसा है जिस पर सेल्स करते समय सेलर ने ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट कर लिया है 206C1H के अलावा, तो उस पर भी उसे टीसीएस कलेक्शन की फिर उस पर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है बायर को। या कोई अमाउंट ऐसा है जिस पर 206C1H पे अगर टीसीएस, क्योंकि 206C1H में ऑलरेडी लिखा है कि अगर कोई अमाउंट पर टीडीएस हो गया तो 206C1H में उस पर टीसीएस नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने ये 2-3 एक्सक्लूजन दिए कि अगर अन्य सेक्शन में टीडीएस हो गया तो 194Q में जरूरत नहीं है, अन्य सेक्शन में टीसीएस हो गया तो 194Q जरूरी नहीं है, या 206C1H में ऑलरेडी लिखा है कि टीडीएस किसी भी सेक्शन में हो जाएगा तो 206C1H इज नॉट एप्लीकेबल। नॉन फाइलर्स, अगर कोई नॉन फाइलर है जिन्होंने पिछले 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न लगातार फाइल नहीं किए और उनका पर ईयर 50,000 से अधिक का टीडीएस टीसीएस होता है, तो उनके ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है उसका भी डबल रेट से टीडीएस डिडक्शन किया जाएगा। At the normal at twice the rate in force or at the rate of 5% whichever is higher। जो भी नॉर्मल रेट है, मान लिया 2% है तो 2 की जगह 4, अगर टीडीएस का रेट 2% है तो 2 का डबल हो गया 4, अगर 4 पे भी या 5% whichever is higher, तो whichever rate is higher उस रेट पर टीडीएस काटा जाएगा। Sir, yes sir, a question has been raised. Sir, Shweta Bhatnagar line पे है. She want to ask a question. Can we take her question? हाँ, yes, बोलिए। हाँ, Shweta, are you there? Shweta. Hello, Mani. हाँ, Shweta. Ask your question, Shweta. Sorry. I'm not asking any question. Maybe there is confusion. You have raised your hand, Shweta. okay. No problem. Okay, now I am continuing. Okay, now I am continuing और जो भी questions, okay. Okay, sorry. 234C में जो इंटरेस्ट होता है, तो इस करंट ईयर में डिविडेंड है बिकम टैक्सेबल, लास्ट ईयर से डिविडेंड हैज बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट को डिविडेंड कब आने वाला, दैट इज नॉट सर्टेन। किस मंथ में आएगा, इट इज नॉट सर्टेन। तो अगर मान लिया किसी व्यक्ति को जनवरी में कोई डिविडेंड आता है, तो देन ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर 234C फॉर हिज अर्लियर 3 एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स। इसलिए उन्होंने एक क्लॉज दे दिया है कि डिविडेंड की इनकम के कारण से किसी भी व्यक्ति को 234C का इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट अंडर 234C।
बट उन्होंने इसमें 222E को एक्सक्लूड किया बिकॉज 222E इज ए डिम्ड डिविडेंड, दैट इज ए डिफरेंट, उसके अंदर उस दैट इज नॉट कवर्ड। 234H, अगर कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर, इनकम आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन इंटीमेट नहीं करता है एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 139AA सबसेक्शन 2, then he will be required to pay a penalty of ₹1000। 234H में उसे 1000 रुपए का अमाउंट जुर्माना फाइन, he will be required to pay a fine of ₹1000। रीअसेसमेंट की लिमिट जो पहले 6 साल थी, 6 साल को घटाकर 3 साल कर दिया, हमें ऑलरेडी पता है। अगर 50 लाख से कम का कंसीलमेंट है, 50 लाख से अधिक का है तो 10 साल तक के केस रीओपन हो सकते हैं। पहले अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख से अधिक का एस्केपमेंट है तो 4 साल तक के केस रीओपन हो सकते थे। 1 लाख से अधिक का एस्केपमेंट है तो 6 साल के केस रीओपन हो सकते थे। और अगर किसी व्यक्ति की फॉरेन एसेट कोई अनडिस्क्लोज पाई जाती है, फॉरेन की इनकम पाई जाती है, तो उसके 16 ईयर्स तक के केस रीओपन हो सकते थे। तो अब ये जो 16 ईयर्स की टाइम लिमिट है, इसको भी घटा करके ये भी 3 ईयर्स में कवर्ड हो गया है। 6 ईयर्स तो 16 साल की जो लिमिट है 3 ईयर्स हो गई है। किंतु अगर कोई 50 लाख से अधिक का पर ईयर का एस्केपमेंट है तो वो 10 साल की टाइम लिमिट जरूर है। दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एन एसेट आल्सो। असेसमेंट की टाइम लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, एनी ऑर्डर रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ ईयर ऑफ 2021-22 shall be completed within 9 months from the end of the assessment year in which the income was first assessable। तो असेसमेंट ईयर 2021-22 के जो असेसमेंट है वो 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट किए जाएंगे। एज इट इज जो पुराना प्रोविजन है वही चल रहा है। रीअसेसमेंट के लिए टाइम लिमिट पहले भी 12 मंथ थी, वही चल रही है कि जो भी जिस भी ईयर में 148 का नोटिस सर्व किया गया है विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस इज सर्व्ड, नोटिस सर्व करने से बाद वाले फाइनेंशियल ईयर के 12 मंथ्स में रीअसेसमेंट का ऑर्डर कंप्लीट करना कंपलसरी है। इस बजट में 147 पूरा रीड्राफ्ट कर दिया गया है। 147 में पहले रीजन टू बिलीव शब्द कंपलसरी था, अब उन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग चेंज कर दिया। अब उन्होंने लिखा इंफॉर्मेशन विद द असेसिंग ऑफिसर which suggest that income chargeable to tax has escaped assessment in case of the assessee for the relevant assessment year and the assessing officer has obtained prior approval of specified authority। पहले 147 की लैंग्वेज अलग थी। पहले ये लिखा था assessing officer has reason to believe that the income has escaped assessment and he may assess any other income। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी एसएससी का कोई किसी रीजन टू बिलीव के कारण से केस रीओपन किया गया है और उस रीजन टू बिलीव के कारण से जो मान लिया किसी असेसिंग ऑफिसर ने पाया कि इस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए के शेयर्स सेल किए थे, उसके कारण से उसका केस रीओपन किया। फिर जब केस रीओपन किया गया तो उसके बाद मालूम पड़ा कि इस असेसी ने 10 लाख रुपए की कोई इमोबल प्रॉपर्टी भी सेल की थी। तो जब रीओपन हुआ तो मालूम पड़ा कि 10 लाख रुपए की जो इमोबल प्रॉपर्टी सेल की थी वह तो कैपिटल गेन से छूट गई, किंतु 5 लाख के शेयर एसएससी ने ऑलरेडी अपने रिटर्न में डिस्क्लोज कर दिए थे। तो 5 लाख का जिस रीजन टू बिलीव के कारण केस रीओपन किया उसमें तो कोई एडिशन नहीं हुआ, किंतु इमोबल प्रॉपर्टी पे एडिशन हो गया। तो देयर वर सो मेनी जजमेंट, उसमें ये कहा गया था कि जिस ग्राउंड पर रीजन टू बिलीव आपने फॉर्मेशन किया है, जिस रीजन पर आपने केस को रीओपन किया, अगर उस रीजन से कोई भी एडिशन नहीं हुआ है तो आप एनी अदर इशू पर एडिशन नहीं कर सकते। सो आपका असेसमेंट नल एंड वाइड हो जाएगा। इसलिए जिस इशू पर केस रीओपन किया गया उस इशू पर रीओपनिंग एडिशन होना कंपलसरी, तभी आप अदर इनकम को एडिशन कर सकते हैं, अन्यथा अदर इनकम का एडिशन भी अलाउड नहीं है। अब जो उन्होंने नया ड्राफ्टिंग किया, अब उन्होंने वो जो एंड शब्द था सेक्शन 147 में पहले, उसको उन्होंने हटा दिया। सो नाउ अब अगर उनको किसी भी कारण से उन्होंने केस रीओपन किया, उस इशू पर भी अगर वो एडिशन नहीं किया और अन्य कोई इनकम पे एडिशन किया, दैट इवन दो द असेसमेंट विल बी वैलिड। अब उन्होंने ये कहा है कि असेसिंग ऑफिसर हैज इंफॉर्मेशन
which suggest that income chargeable to tax has escaped assessment. तो इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? वो इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ दो इंफॉर्मेशन दी हुई है. Any information flagged in the case of the assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board. तो CBDT अपने कई सारे पैरामीटर्स फिक्स करेगी, कई सारे पैरामीटर्स ऑफिशियली वो लोग डिक्लेयर करेंगे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन ये अगर असेसी के इसमें फ्लैग कर दी है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको 148 का नोटिस इशू करेगा, ऑटोमेटिकली उसका केस रीओपनिंग में लेकर जाएगा. That will be treated as a information. उसको 148 में इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट मान लिया जाएगा. जैसे किसी एसएससी की इसमें अगर हो गया कि मान लिया उसकी टीडीएस उसने क्लेम नहीं किया, तो उस टीडीएस से रिलेटेड इनकम को कंप्यूटर फ्लैग कर देगा कि ये चूंकि टीडीएस क्लेम नहीं किया सो इंफॉर्मेशन इज फ्लैग्ड, इसलिए माना जाता है कि ये इनकम भी एसएससी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं की है. तो उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अपने आप फ्लैग कर देगा. इस तरह के कई सारे की इंफॉर्मेशन जो उनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसे हम एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न बोलते हैं उसके द्वारा भी जो इंफॉर्मेशन आएगी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल है, शेयर्स का सेल है या एफडीआरस के इंटरेस्ट हैं, कमीशन की इनकम है, जिन जिन चीजों पर टीडीएस कटा हुआ है, टीसीएस कलेक्शन हुआ है, वो चीजें अगर उसके रिटर्न में क्लेम नहीं है तो सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर खुद इस इंफॉर्मेशन को असेसी के रिटर्न में फ्लैग कर देगा. उसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर को यह इट विल बी ट्रीटेड एज ए इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड. फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने लिया एनी फाइनल ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय C&AG. C&AG के द्वारा अगर कोई पुराने असेसमेंट्स का ऑडिट किया जाता है, उसमें पाया जाता है कि एओ ने कोई इंफॉर्मेशन पर टैक्स नहीं लगाया है या लॉ को फॉलो नहीं किया है, तो पहले कई सारे जजमेंट थे कि C&AG के ऑडिट ऑब्जेक्शन को रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा. एओ को खुद को अपना रीजन टू बिलीव फॉर्मेशन करना जरूरी होता था, अदरवाइज उसे बोरोड सेटिस्फेक्शन माना जाता था. तो बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर अगर कोई 148 का नोटिस रीओपनिंग होता था तो वह नोटिस या रीओपनिंग और असेसमेंट को इनवैलिड माना जाता था, नल एंड वाइड माना जाता था, बिकॉज दैट वाज नॉट द रीजन टू बिलीव ऑफ द एओ हिमसेल्फ, दैट वाज द रीजन ऑफ द C&AG. अब उन्होंने ये कह दिया कि C&AG ने अगर कोई फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज किया है तो फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन को भी यह माना जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट. फिर 50 लाख से अधिक की इनकम का एक इन्होंने ये नया क्लॉज आया है कि अगर किसी एसएससी के केस में 50 लाख से अधिक की इनकम का एस्केपमेंट पाया जाता है तो पिछले 10 वर्षों के केस उसके रीओपन किए जा सकते हैं. अगर मान लिया किसी व्यक्ति का असेसमेंट ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न उनका अभी उन्होंने फाइल किया है तो 31 मार्च 2031 तक भी उस व्यक्ति को पिछले 10 साल के अंदर अगर कोई भी कंसीलमेंट या एस्केपमेंट ऑफ इनकम पाया जाता है तो उसका केस रीओपन किया जा सकेगा. बट यहां पर एक कंडीशन दी गई है, इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज पोजीशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस which reveal that income chargeable to tax represented in the form of asset has escaped, तो that should be supported by an asset also. अगर मान लिया किसी व्यक्ति के यहाँ 5 साल पहले कोई शादी का खर्च की डिटेल मिली कि इन्होंने मैरिज में 1 करोड़ का खर्च किया था, पर वो 1 करोड़ का खर्च केवल उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट को ही 1 करोड़ पे कर दिया, उनके पास कोई एसेट नहीं है, he does not have any gold bullion jewelry, then that will not be reopened, क्योंकि उसमें that should be supported by an asset also. फॉरेन एसेट के जो केस पिछले 16 वर्ष के को ओपन किए जा सकते थे, अब वो क्लॉज इसमें से इस वाले बजट में से हट गया है, तो अब फॉरेन के जो 16 इयर्स के केसेस है वो रीओपन नहीं किया जाएंगे, वो भी 3 साल और 10 साल की टाइम लिमिट में ही कवर्ड होंगे. किंतु यहाँ पर ये जो 50 लाख वाला है ऑप्शन है, इसमें एक चीज हमें ये ध्यान रखना है, दैट मैंने आगे की स्लाइड में उसे कवर किया है वैसे कि असेसमेंट ईयर 12-13 का केस क्या इसके कारण रीओपन किया जा सकेगा. अगर मान लिया कोई 31
मार्च 2021 को किसी एसएससी का केस अभी असेसमेंट ईयर 12-13 रीओपन नहीं किया जा सकता, किंतु 1 अप्रैल 2021 से नया फाइनेंस एक्ट 2021 लागू हो गया। 12-13 में उसका 70 लाख रुपए का एस्केपमेंट पाया गया। तो क्या ये केस रीओपन हो सकता है? लॉ के अनुसार हो सकता है, किंतु उन्होंने एक्सक्लूजन दे दिया है ऑलरेडी। उन्होंने ये एक्सक्लूजन दिया है कि जो केस 31 मार्च 2021 को 6 इयर्स की टाइम लिमिट में ऑलरेडी टाइम बार्ड थे, वो केसेस आने वाले ईयर में भी रीओपन नहीं किए जा सकेंगे। इस क्लॉज के कारण उन्हें रीओपन नहीं किया जाएगा। नहीं तो एक तरह से ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति 6 साल पहले बच गया उसे इस सेक्शन के द्वारा ट्रैप कर लिया गया, सो दैट विल नॉट बी अलाउड टू बी डन हियर। अब नए असेसमेंट प्रोसीजर में पहले 148A एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस बजट में। इसमें उन्होंने ये बोला है, असेसिंग ऑफिसर शुड हैव इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। फिर जब अगर असेसिंग ऑफिसर के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, देन AO विल कंडक्ट द इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 148A विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। पहले क्या है कि असेसिंग ऑफिसर को ये प्रायर अप्रूवल, इंक्वायरी चालू करने से पहले भी प्रायर अप्रूवल लेना होगा। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो भी असेसिंग ऑफिसर डायरेक्टली कोई नोटिस इश्यू नहीं कर सकता है, उसे पहले स्पेसिफाइड अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल के बाद उसे पहले इंक्वायरी करना होगी एसएससी के साथ, फिर एओ इंक्वायरी करेगा, एसएससी को नोटिस देगा, एओ की प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेकर 148A का नोटिस देगा। एसएससी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि हम आपको नोटिस इशू करना चाहते हैं, आपके पास आपके अगेंस्ट में ये इंफॉर्मेशन है, नाउ व्हाट यू वांट टू से अगेंस्ट दिस। तो एसएससी को 7 दिन से लगाकर 30 दिन तक का समय दिया जाएगा, मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि व्हाट यू वांट टू से अगेंस्ट दिस। फिर एसएससी का रिप्लाई आएगा, अगर रिप्लाई नहीं भी आया तो 30 दिन का जब टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगा, उसके अगले 30 दिनों में एओ फिर अपना प्रायर अप्रूवल लेकर के 148 का नोटिस इशू कर सकता है। तो अब 148 का नोटिस इशू करने से पहले ही ऑलरेडी एओ को एसएससी के साथ इंक्वायरीज करना होगी, पहले पत्राचार होगा, उसके बाद ही 148 का नोटिस इशू किया जा सकेगा। सो अदरवाइज अभी तक ये होता है कि 148 का नोटिस आ जाता है, नोटिस आने के बाद हम आईटीआर फाइल करते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट हमें रीजन टू बिलीव प्रोवाइड करता है, किंतु रीजन टू बिलीव का सारा अब 148 के पहले ही सारी इंफॉर्मेशन एओ आपको बता देगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट में है और इसके अगेंस्ट में आप व्हाट यू वांट टू से। और हर स्टेप पर असेसिंग ऑफिसर को प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा, तभी वह 148A की प्रोसीडिंग कर पाएगा। फिर 148A का ऑर्डर विद इन 1 मंथ पास किया जाएगा। फिर AO will issue a notice under section 148 with prior approval of the specified authority under section 151 along with copy of order। 148A में जो ऑर्डर पास किया है उन्हें उसकी कॉपी और 148 का नोटिस दोनों साथ में एसएससी को इश्यू किए जाएंगे और असेसिंग ऑफिसर खुद लिखेगा कि इट इज ए फिट केस फॉर रीओपनिंग विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अगर 3 इयर्स या उससे कम पीरियड के कोई केस रीओपन करना है, उसके लिए प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल डीआईटी या सीआईटी और डीआईटी का अप्रूवल लगेगा। अगर 3 वर्ष से ज्यादा के किंतु 10 वर्ष से कम के कोई केस रीओपन करना है, उसमें प्रिंसिपल सीसीआईटी या प्रिंसिपल डीजीआईटी या सीसीआईटी और डीजीआईटी की अप्रूवल लगेगी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 50 लाख से अधिक के इसमें 3 साल से अधिक किंतु 10 साल से कम, एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स से सपोर्टेड होना जरूरी है। अदरवाइज किसी भी एसएससी के अगेंस्ट में मान लिया कोई कागज मिल गया जिसमें लिखा था कि इन्होंने 1 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया था, 6 साल पुराना कागज किसी एसएससी के यहाँ से सर्च में प्राप्त हुआ, किंतु अगर मान लिया 1 करोड़ का कागज उसके यहाँ मिला कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए का लोन 6 साल पहले किसी से लिया था।
अब उसके पैरेलल उसके पास या तो 1 करोड़ की कोई इमोबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, 1 करोड़ का कैश इन हैंड होना चाहिए, 1 करोड़ की एफडी होना चाहिए। एसएससी के 1 करोड़ का अनडिस्क्लोज लोन का कागज तो मिल गया, किंतु उसके पैरेलल उसके पास ना कोई गोल्ड ज्वेलरी बुलियन है, ना कोई प्लॉट है, ना एफडी है, ना कैश है। तो इस तरह का केस रीओपन नहीं किया जा सकेगा, बिकॉज इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द एसेट। तो वह कागज केवल एक रद्दी कागज ही कहलाएगा, जो अनसिक्योर्ड लोन का बोगस कागज है, दैट इज ओनली ए डंप डॉक्यूमेंट। पहले 50 लाख से अधिक के लिए 153A में प्रोविजन था, वो सर्च के केस में ही लागू होता था। अब उन्होंने इसको यह कहीं नहीं लिखा है कि सर्च के केस में लागू होगा। तो अदर देन सर्च केस में भी 50 लाख से अधिक पर ईयर का अगर कोई एस्केपमेंट है, देन दैट केस कैन बी रीओपन। जो 148, अब जो पहले सर्च और सर्वे के असेसमेंट, सर्च के असेसमेंट जो होते थे 153A और 153C में होते थे। अब 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी सर्च और सर्वे होंगे, उसमें सर्च या रिक्विजिशन होंगे, उसमें 153A और 153C लागू नहीं होगा। 1 अप्रैल या उसके बाद जो भी सर्च सर्वे, सर्च और रिक्विजिशन होंगे, वह असेसमेंट भी नॉर्मल 147, 148 के सिस्टम के अंतर्गत ही होंगे। 148A का प्रोसीजर 132 में नहीं लागू होगा। 132 अर्थात सर्च और रिक्विजिशन के केसेस में इट विल ऑलवेज डीम्ड कि एओ के पास इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग है कि इनकम इज एस्केप्ड। तो उसमें 148A का जो प्रोसेस होता है, प्रायर अप्रूवल लेना वगैरह, ये रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। 148 का नोटिस इश्यू करने के पहले 148A का ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं होगी। 132 और 132A के केस ओनली इन सर्च और रिक्विजिशन के केसेस में 3 साल के केस एओ कैन रीओपन एनी टाइम। प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, अभी तक जो 153A और 153C के जो सर्च के असेसमेंट होते हैं, रिक्विजिशन के असेसमेंट होते हैं, उसमें सेक्शन 153D में जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल कंपलसरी होती है। किंतु अब जो नए प्रोविजन आ गए हैं, उसमें उन्होंने सर्च और रिक्विजिशन के केसेस में भी जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हटा दी है। सो नाउ देयर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अप्रूवल ऑफ सर्च केसेस। तो जो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है, उसका असेसमेंट ऑर्डर ही हिमसेल्फ द अप्रूविंग अथॉरिटी, उसे खुद को ऑर्डर पास करना है। 153D में जॉइंट कमिश्नर के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होगी। सर्वे के केस में भी ये माना जाएगा कि एओ के पास 3 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किंतु सर्वे के केस में 148A का जो प्रोसीजर है, हर ईयर के लिए एओ को एडॉप्ट करना होगा कि सर्वे के केस में अगर 3 साल में उसकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम नहीं पाई जाती है, 148A में अगर असेसी बताया था कि साहब इस ईयर की इंफॉर्मेशन मेरी आपके पास जो भी है वो गलत है, देन हर 3 साल के केस रीओपन नहीं होंगे। किंतु सर्च और रिक्विजिशन 132 और 132A में तो 3 साल के केस बाय डिफॉल्ट रीओपन होंगे, चाहे उस ईयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन एओ के पास है या नहीं है। किंतु 133A के केस में 3 साल के केस रीओपन कर सकता है एओ, बट देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन। और एओ को 148A का जो प्रोसीजर है, इंक्वायरी करना होगी, फिर 148 का नोटिस इश्यू होगा। (148A) is not applicable in case where search is initiated under 132 or requisition is made under 132A on or after 1st April 2021. Notice under section 148 shall be issued for all the 3 years. By default 3 साल के नोटिस इश्यू किए जाएंगे। However, in the case of survey, notice under section 148 of the Act for reopening shall be issued only after following the procedure laid down under 148A. That is, after making the inquiry, providing opportunity of being heard to the assessee, then pass an order under section 148A, then issue notice under section 148 for the preceding 3 assessment year in case of the survey under 133A. जो मैंने पहले चर्चा की थी कि क्या असेसमेंट ईयर 12-13 का नोटिस इस नए केस के कारण, चूंकि 50 लाख से अधिक की इनकम के कारण पिछले 10 वर्ष का केस भी रीओपन किया जा सकता है,
नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो नए प्रोविजन आए हैं उसमें उन्होंने 147 में एक्सक्लूजन दिया है कि जो केस पुराने समय में टाइम बार्ड हो चुके थे वो इस 10 साल की टाइम लिमिट के कारण वापस से रिवाइव नहीं हो सकते। देयर वाज ए जजमेंट ऑफ आईटीआईटी मुंबई बेंच ऑल्सो, उसमें उन्होंने कहा था ये आईटीआईटी मुंबई का टीडीएस का एक केस है, टीडीएस में भी पहले 2 साल की टाइम लिमिट थी, 2 साल की टाइम लिमिट को बढ़ा करके सेक्शन 201 में 7 ईयर कर दिया। तो चूंकि 2 इयर्स की टाइम लिमिट के कारण एक केस रीओपन नहीं हो पाया, किंतु 7 इयर्स जैसे ही एक्ट में इंट्रोड्यूस किया एसएससी का केस डिपार्टमेंट ने रीओपन कर दिया कि साहब 4 साल पुराना केस रीओपन करना है। तो मुंबई आईटीआईटी ने जजमेंट किया कि जो केस आपका पहले रीओपन नहीं हो सकता था वो सब्सिक्वेंटली लॉ में चेंज होने के कारण बैकडेट से रीओपन नहीं किया जा सकता। नहीं तो कोई भी केस जो अभी 2 साल में रीओपन नहीं हो रहा, लॉ में 7 साल कर दिया तो पिछले 5 साल के केस वैसे ही रीओपन हो गए जो पहले ऑलरेडी बच चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप किसी को ऐसे बैकडेट से ट्रैप नहीं कर सकते, सो दैट केस विल नॉट बी रीओपन। अभी 30 अप्रैल 2021 तक 148 के नोटिस इश्यू करने की लास्ट डेट है। ये असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 इन 5 असेसमेंट ईयर के नोटिस इश्यू करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। उसके बाद असेसमेंट ईयर 17, 18 या उसके पहले का कोई भी नोटिस रीओपन नहीं किया जा सकेगा। फिर 30 अप्रैल 2021 तक असेसमेंट की टाइम बारिंग की लास्ट डेट चल रही है। असेसमेंट ईयर 18-19 की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। 19-20 की लास्ट डेट जो पहले 31 मार्च 2021 थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 30 सितंबर 2021 कर दिया है। जो पेनल्टी के जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो 30 जून 2021 तक उसकी लास्ट डेट है ऑर्डर पास करने की। स्क्रूटनी के नोटिस की टाइम लिमिट को बढ़ाकर उन्होंने 3 मंथ और कम कर दिया है। पहले विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड था, अब उन्होंने लिख दिया विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। तो अब असेसमेंट ईयर समाप्त होने से ओनली 3 मंथ्स के अंदर ही 143(2) के जो स्क्रूटनी के नोटिस है वो आ जाएंगे और उसका असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट भी 9 मंथ्स है। within 9 months from the end of the assessment year in which the income was first assessable, अर्थात within 3 months नोटिस आ जाएंगे। असेसमेंट ईयर 21-22 के जो रिटर्न हम फाइल करेंगे, दिसंबर 21 तक हम रिटर्न फाइल करेंगे, उसकी जो नोटिस है वो हमें 30 जून 2022 तक प्राप्त होगा और उसका ऑर्डर हमें 31 दिसंबर 2022 तक प्राप्त हो जाएगा। 143(1) है। 143(1) की जो टाइम लिमिट इंटीमेशन की पहले 12 मंथ थी, 12 मंथ की टाइम लिमिट को घटाकर अब 9 मंथ कर दिया गया है। फिर एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट उन्होंने किया है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो हम पहले कोई भी एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते थे, मान लिया एसएससी ने कोई पेमेंट किया है बिना टीडीएस के या सेक्शन 36(1)(5)(a) में पीएफ ईएसआई का पेमेंट किया है जो डिसअलाउ होना चाहिए, वो 143(1)(a)(4) में डिसअलाउंस होके बाय प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट सीपीसी हमें डिसअलाउ करके भेज देता था, किंतु इंक्रीज इन इनकम का एडजस्टमेंट करने का अधिकार सीपीसी को नहीं था। अब इस बजट में उन्होंने ये कर दिया है कि सीपीसी को इनकम में इंक्रीज करने का भी अधिकार अलाउड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सीपीसी को कोई भी इनकम में एडिशन करने का अधिकार असेसमेंट ईयर 21-22 से अलाउड होगा। पर पिछले भी कुछ ऐसे कई सारे हमारे सीपीसी के ऑर्डर्स देखने में आए हैं जिसमें सीपीसी ने इनकम को भी इंक्रीज कर दिया है। तो अगर ऐसे कोई केसेस है तो उसे आप अपील में ले जा सकते हैं। अपील में आप बोल सकते हैं कि सीपीसी को पहले केवल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करने का अधिकार था, इनकम में कोई भी एडिशन करने का अधिकार नहीं था। जो अधिकार उन्होंने मिसयूज किया है दैट इज नॉट अलाउबल एज पर लॉ, सो दैट इज प्राइमा फेसी डिसअलाउड और उस केस को आप इंटीमेशन को आप चैलेंज कर सकते हैं। मान लिया जैसा पीएफ ईएसआई को इनकम माना जाता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अगर आपने विद इन ड्यू डेट नहीं भरा इनकम माना जाता है, तो दैट इज इनकम, दैट इज नॉट एन एक्सपेंसेस। तो इनकम का अधिकार उन्हें था ही नहीं पहले पीएफ ईएसआई का, सो दैट वाज नॉट अलाउबल, क्योंकि ये अधिकार इस फाइनेंस एक्ट 2021 से उन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसे ही किसी मान लिया किसी को अगर ट्रस्ट का इनकम है, ट्रस्ट की इनकम को डीम्ड इनकम उन्होंने मान लिया, या ट्रस्ट ने अपना कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, उसकी इनकम को उन्होंने
एक्सपेंडिचर डिसअलाउ तो करना उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मान सकते, तो इस तरह के एडजस्टमेंट 143(1)A में नहीं कर सकते। किंतु सीपीसी ने कई सारे एडजस्टमेंट वो कर दिए जो उन्हें 143(1)A में अलाउड ही नहीं है, तो उन्हें आप अपील में चैलेंज कर सकते हैं। 154 सेक्शन 154 में जो रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट है वो अभी तक भी चेंज नहीं की गई है, इस बजट में भी चेंज नहीं की गई है। अधिकांश लिमिट को उन्होंने 12 मंथ से घटाकर 9 मंथ्स कर दिया है, किंतु 154 की टाइम लिमिट अभी भी 4 साल है। अगर मान लिया किसी क्लाइंट का आपके असेसमेंट ईयर 2014-15 का असेसमेंट ऑर्डर 30 अप्रैल 2021 को पास होता है, तो डिपार्टमेंट को या एसएससी को उसका 154 लगाने का अधिकार 31 मार्च 2026 तक होगा, विद इन 4 ईयर्स। आपका कोई टीडीएस रिटर्न है, टीसीएस का रिटर्न है, या आपका कोई रेगुलर असेसमेंट है 143(1)A है, उसके लिए विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी अमेंडेड वाज पास्ड। जिस ईयर में ऑर्डर पास हुआ उसके बाद के 4 साल में आप कभी भी रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन आप भी लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट भी रेक्टिफाई कर सकता है। तो 31 मार्च 26 तक आपका ऑर्डर रेक्टिफाई किया जा सकता है, उस लिमिट को डिपार्टमेंट ने चेंज नहीं किया है। 200A के अनुसार जो टीडीएस का रिटर्न या टीसीएस का रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, that can be processed within 1 year from the end of the financial year in which the TDS statement is filed। जिसको हम टीडीएस रिटर्न बोलते हैं उसे एक्चुअली टीडीएस स्टेटमेंट बोला जाता है। हम बोलचाल की भाषा में टीडीएस रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टीडीएस स्टेटमेंट। तो टीडीएस स्टेटमेंट या टीसीएस स्टेटमेंट जो आप फाइल करते हैं, that can be processed within 1 year from the end of the financial year in which the statement is filed। किंतु as per section 201, an order deeming a person to be an assessee in default for failure to deduct or short deduct can be passed within 7 years। अगर किसी assessee ने किसी केस में शॉर्ट डिडक्शन किया है या शॉर्ट नॉन डिडक्शन किया, किसी केस में टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया या शॉर्ट डिडक्शन किया, उसका केस 7 ईयर्स तक रीओपन किया जा सकता है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, ये पहले से ही प्रोविजन चला रहा है। और विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच करेक्शन स्टेटमेंट इज गिवन, मतलब 7 + 2 साल, 7 ईयर्स में अगर आपका कोई केस रीओपन हुआ, उसका आपने रिएक्टिफिकेशन किया तो 2 साल और बाद तक भी वो रीओपन किया जा सकता है। तो मिनिमम 7 ईयर्स में शॉर्ट डिडक्शन या नॉन डिडक्शन का केस रीओपन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 201। मान लिया किसी एसएससी ने आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 में टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल किया, तो उसका 31/3/2025 तक भी केस सेक्शन 201 में रीओपन किया जा सकता है। तो ये 7 साल की टाइम लिमिट अभी भी इस बजट में भी चेंज नहीं की गई है। किंतु अगर किसी व्यक्ति ने टीडीएस काट के रख लिया अपने पास और उसको जमा नहीं किया, तो उसके लिए 7 साल की भी टाइम लिमिट नहीं है, उसके लिए अनलिमिटेड है। मान लिया किसी ने फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में 1 लाख रुपए का टीडीएस डिडक्ट करके रख लिया, जो 10 साल तक भी जमा नहीं किया, 31 मार्च 2021 तक भी जमा नहीं किया, तो उसका केस 10 साल के 15-20 साल बाद भी रीओपन हो सकता है। देयर इज नो लिमिट बिकॉज ही हैज गवर्नमेंट मनी विद हिम। किसी व्यक्ति के पास अगर सरकार का पैसा जमा है तो उसके लिए अनलिमिटेड टाइम में गवर्नमेंट उसका केस रीओपन कर सकती है। टीसीएस के रिटर्न प्रोसेस करने की टाइम लिमिट 1 ईयर ही है। टीसीएस के लिए ओनली 7 ईयर्स की टाइम लिमिट लागू नहीं होती, ओनली टीडीएस के लिए लागू होती है। सर्वे, अभी हम देख रहे हैं फेसलेस के असेसमेंट चल रहे हैं। फेसलेस के असेसमेंट के दौरान हम सोचते हैं कि अगर हमारे क्लाइंट ने डिपार्टमेंट को कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, असेसी ने कहा मैं साइलेंट रहता हूं, चाहे जितने स्क्रूटनी के नोटिस आते रहे ऑनलाइन पोर्टल पर, आई विल नॉट गिव एनी रिप्लाई। देन फेसलेस डिपार्टमेंट को भी आपके यहाँ सर्वे करने का अधिकार है। वो आपके जुरिडिक्शनल इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा और वेरिफिकेशन यूनिट की जुरिडिक्शनल वेरिफिकेशन यूनिट की हेल्प लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन कैरी आउट द सर्वे ऑल्सो एट द प्रीमाइसेस ऑफ दैट असेसी। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फेसलेस में हम इंफॉर्मेशन का रिप्लाई नहीं देंगे या गलत रिप्लाई देंगे तो हम एस्केप नहीं कर सकते। लोकल इन्वेस्टिगेशन विंग कैन कैरी आउट द सर्वे। टीडीएस सर्वे टीडीएस विंग के द्वारा ही किया जा सकता है, पर टीडीएस सर्वे के लिए प्रिंसिपल सीसीआईटी जो जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल सीसीआईटी है या सीसीआईटी टीडीएस है, उसका अप्रूवल लेना होगा।
सेंट्रल सर्कल के द्वारा भी सर्वे किया जा सकता है। सेंट्रल सर्कल द्वारा जो भी सर्वे किया जाएगा वो भी DGIT इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच से किया जाएगा। एग्जेम्पशन सर्कल के द्वारा भी कोई सर्वे किया जा सकता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों की हेल्प लेकर एग्जेम्पशन विंग कैन आल्सो कैरी आउट द सर्वे। रिकवरी सर्वे, अगर किसी व्यक्ति का कोई टैक्स ड्यू है वो उसके द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑनलाइन उन्होंने ऑनलाइन एसएससी का सारा प्रोफाइल देख लिया, एसेट डिटेल्स देख लिया, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट रिकवरी करने में अगर सफल नहीं रहता है तो डिपार्टमेंट कैन कैरी आउट द रिकवरी सर्वे एट द प्रीमाइसेस ऑफ द एसएससी। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे कोई TDS का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन कैरी आउट TDS सर्वे आल्सो एट द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ द एसएससी। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट पर TDS और TCS का सर्वे नहीं कर सकता। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस है या लोकल अथॉरिटी का ऑफिस है, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS और TCS का सर्वे करने का अधिकार न तो अभी है ना पहले भी कभी भी नहीं था। किंतु पहले कई बार ये देखा है डिपार्टमेंट ने कई सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पर TDS TCS के सर्वे करे, कई सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस पर भी TDS वालों ने सर्वे किए। वो ऑल दो सर्वेज वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ बिकॉज TDS and TCS survey can be done only at the business and professional place। क्योंकि चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई बिजनेस नहीं किया जा रहा, सो या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, therefore there cannot be any TDS and TCS survey at their premises। सेटलमेंट कमीशन हैज बीन abolished, हमें सभी को पता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटीज अब उन्होंने एस्टैब्लिश की है कि अगर किसी की 10 लाख से अधिक का वेरिएशन नहीं है तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी में जाकर दे कैन सेटल देयर डिस्प्यूट्स। सो इन माय ओपिनियन these are the issues as per the important issues which I could discuss under this Finance Act 2021। अब इस 1-2 मिनट की चर्चा और मैं करना चाहूंगा कि अभी फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा पहले पिछले वर्ष में जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को नया रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लास्ट ईयर करवाने की जरूरत थी, वह ड्यू डेट बढ़ते नाउ दिस इज फाइनली ड्यू डेट द 1 अप्रैल 2021 से अभी जो भी पुराने एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उनके रजिस्ट्रेशन अब करना स्टार्ट हो गए हैं। जो भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पहले से रजिस्टर्ड थे या रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें सभी को कंपल्सरीली इनकम टैक्स एक्ट में नया रजिस्ट्रेशन अब कराना होगा एज पर 12AB और 1023C और 80G। पहले 80G भी लाइफ टाइम था, 12AA लाइफ टाइम था, 1023C लाइफ टाइम था। अब सबको लाइफ टाइम से हटाकर उन्होंने 5 इयर्स का रजिस्ट्रेशन कर दिया। अगर कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो पहले से 1 अप्रैल 2021 के पहले से 1023C में, 12AA में या 80G में रजिस्टर्ड है, उन्हें 5 इयर्स के लिए रिन्यूअल दिया जाएगा। एवरी 5 इयर्स के बाद उनका रिन्यूअल को रिव्यू किया जाएगा। या जो कोई ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें 3 इयर्स के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो 80G, 12AA या 1023C के लिए फॉर्म नंबर 10A में हमें अप्लाई करना होगा। फिर वहां से 10AC में हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर किसी का पहले से रजिस्ट्रेशन है तो डिपार्टमेंट को विद इन 3 मंथ्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना है 10AC में। अगर किसी का पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं था, 1 अप्रैल 21 के पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, किसी ट्रस्ट ने अपना नया रजिस्ट्रेशन अभी अप्लाई किया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस मंथ में आपने अप्लाई किया उसके अगले 1 मंथ के अंदर आपको 10AC में ऑर्डर पास किया जाएगा। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी होगा आपका विद इन 1 मंथ ऑर्डर आपको दिया जाएगा। फिर जब आप रिन्यूअल करवाएंगे तो रिन्यूअल का आपको 10AB में ऑर्डर फाइल 10AB में आपको फॉर्म फाइल करना होगा और उसका ऑर्डर 10AD में आपको
डिपार्टमेंट इशू करेगा, 10 AD में नया ऑर्डर पास होगा। फिर जिस तरह इसी प्रकार जो 80G में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है वो अगर लोगों से डोनेशन प्राप्त करते हैं, उन्हें 10BD में एक सर्टिफिकेट ईयरली अपना जिस तरह से TDS रिटर्न फाइल होता है ऐसे ही 10BD में एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा, और 10BE फॉर्म सर्टिफिकेट एक जो भी व्यक्ति डोनर है उसे देना होगा। साल भर में उस व्यक्ति ने जो जो भी डोनेशन दिए उसका सर्टिफिकेट 10BE में उसे देना होगा। तो यह कंडीशंस उन्होंने इस बजट के द्वारा लागू कर दी है। तो जो 80G की कंडीशन है वो तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 अर्थात 31 मार्च 22 के बाद लागू होगी। 80G में जो 10BD में हमें सर्टिफिकेट स्टेटमेंट फाइल करना है और 10BE में सर्टिफिकेट देना है, और 1 अप्रैल 21 से जनरली 3 मंथ उन्होंने बोला था, बट हो सकता है 3 मंथ्स की ये जो रजिस्ट्रेशन की ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की टाइम लिमिट है इसे बढ़ाकर 3 मंथ से भी ज्यादा किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक सब जगह वापस जो कोविड की प्रॉब्लम्स चल रही है, हो सकता है इस टाइम लिमिट को सरकार 3 मंथ से बढ़ाकर वापस कुछ आगे कर दे। किंतु एवरी ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन दिस न्यू फॉर्म नंबर 10A, अदरवाइज उन्हें रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स के जो सेक्शन 11-12 के एग्जेम्पशन है वो सब डिनाई हो जाएंगे अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया, या किसी ने अगर गलत इंफॉर्मेशन फर्निश की तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। फॉर्म 10AC के द्वारा दे कैन डिनाई योर एग्जेम्पशन। So this was my discussion on this Finance Act 2021. Thanks a lot to everyone for giving me this opportunity to discuss with you. Thank you. Sir, there are certain questions. Yes, बताइए। Yes. सर निशान देओल का एक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में था ये सर, डेप्रिसिएशन अलाउ होगा या नहीं लोन पर लिए हुए बिजनेस का? लोन पर लिए हुए और वो बिजनेस का 12 वाले चैरिटेबल में आपने जैसे बोला था ना सर, डेप्रिसिएशन तो वैसे भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। अगर किसी भी एसेट को अगर आपने एक बार एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट कर लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। कोई भी एसेट का आप एक ही बार एडवांटेज ले सकते हैं, या तो आप उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम में ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप उस पर डेप्रिसिएशन लेते हैं तो फिर उस एसेट की जो आपकी वैल्यू है, मान लिया आपने बस परचेज की 5 लाख रुपए में, तो बस की ऊपर डेप्रिसिएशन अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो उस 5 लाख को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। अगर आप उस 5 लाख को एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानना चाहते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब अगर आपने वो लोन से ट्रीट किया है तो लोन से ट्रीट करते समय उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम पहली बात नहीं माना जाएगा। जब भी लोन का रीपेमेंट होगा, दैट रीपेमेंट ओनली विल बी द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और उस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा। So one more question from CA Praveen Kumar ji. HUF running diagnostic center by employing doctor, maybe INDL individual karta or karta of HUF, if not covered in 44 ADA, whether covered in 44 AD? अब इस बजट में उन्होंने ये जो फाइनेंस एक्ट 2021, इस बजट में उन्होंने कह दिया कि HUF को 44 ADA लागू नहीं होगा। So अब now HUF is, ये जो HUF इनकम होती है वो उसकी इंडिविजुअल इनकम होती है। देयर इज ए जजमेंट ऑफ लखनऊ ट्रिब्यूनल, इसी डायग्नोस्टिक सेंटर का ही एक जजमेंट है लखनऊ ट्रिब्यूनल का। उस जजमेंट में उन्होंने ये बोला है कि डायग्नोस्टिक सेंटर इज नॉट बीइंग रन बाय ए प्रोफेशनल पर्सन। ये तो केवल अपनी कैपिटल, दे आर इन्वेस्टिंग देयर ऑन कैपिटल, दे आर इन्वेस्टिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, सो दिस इज देयर बिजनेस इनकम। सो इन माय ओपिनियन सच इनकम विल नाउ बी कवर्ड अंडर 44 AD। अगर वो 44 ADA में ले जा रहे थे, दैट वाज आल्सो रॉन्ग, because 44 ADA is applicable only to an individual person who is a professional, and diagnostic center कोई भी व्यक्ति रन कर सकता है। उसके लिए जो मेडिकल प्रोफेशन के रूल रेगुलेशन है, दोज आर डिफरेंट रूल रेगुलेशन। किंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके कोई भी मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर रन कर रहा है, दैट इज हिज नॉट हिज प्रोफेशनल इनकम, दैट इज हिज बिजनेस इनकम। ही इज यूजिंग हिज इंस्ट्रूमेंट्स। उनके यहाँ पे एक्सरे मशीन रखा हुआ है, उनके यहाँ CT स्कैन मशीन रखा है, उसमें उन्होंने उनका कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। सो दैट इज कवर्ड अंडर 44 AD एंड दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर 44 ADA।
Sir, one more question from Praveen Kumar ji. Turnover for section 194Q will be inclusive of GST or not? I think not. Inclusive of GST, they will be sorry, देखिए 2017 में जब GST लागू हुआ था तो सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया था। उस सर्कुलर में उन्होंने कहा था कि सर्विसेज के केस में जीएसटी को एक्सक्लूड कर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, किंतु गुड्स पर ये पहली बार उन्होंने टीडीएस का प्रोविजन लागू किया है। तो गुड्स के उन्होंने अभी तक सर्विसेज के सेक्टर में उन्होंने ये बोल रखा था सीबीडीटी ने कि जो भी जीएसटी पोर्शन है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। So in my opinion, CBDT will come out with a circular in which they will also say that TDS will not be deducted on the GST portion in case of the goods also. क्योंकि अभी तक जो CBDT का सर्कुलर 2014 में भी एक सर्कुलर था, फिर 2017 में CBDT ने एक सर्कुलर इशू किया जीएसटी के बाद, that is relating to only services. तो अब हो सकता है गुड्स के बारे में भी दे विल कम आउट विद ए सर्कुलर, बिकॉज 1 जुलाई से ये प्रोविजन लागू होने वाला है। इवन इफ दे डू नॉट कम आउट विद ए सर्कुलर, हम वो जो 2017 का सर्कुलर जीएसटी के बाद लागू किया था सर्विसेज के लिए, उसी को फॉलो करके वी शुड एक्सक्लूड जीएसटी पोर्शन एंड वी शुड डिडक्ट टीडीएस ओनली एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। राकेश आर्य सर, राकेश आर्य सर। Hello. Nishant, do you want to ask any question? Yes, ma'am. Nishant, please. सर अगर हम कोई लोन पर बस लेते हैं किसी स्कूल के लिए, हाँ, तो उसमें डेप्रिसिएशन अलाउड होगा या नहीं? नहीं होगा ना सर। डेप्रिसिएशन अगर आप ले लेंगे तो डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाएगा, फिर आप उसका जो बस की वैल्यू है वो आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम में ट्रीट नहीं कर सकते। दो में से एक चीज आप कर सकते हैं, आपने लोन ले लिया, लोन लेकर एप्लीकेशन ऑफ इनकम तो नहीं माना जाएगा, वो इस बजट में आ गया कि लोन से अगर आपने कोई भी एसेट परचेज की दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर एप्लीकेशन। जब आप लोन रीपे करेंगे उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। पर आपने कहा कि साहब मैं एक काम करता हूं, हमें बस को एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानना ही नहीं है, हमें तो बस पर डेप्रिसिएशन चाहिए, तो फिर जब आप लोन का रीपेमेंट करेंगे उसे भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। रीपेमेंट विल आल्सो नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ओनली डेप्रिसिएशन फिर उस पे आपको मिलता रहेगा बस। सो यू कैन टेक तीनों में ओनली से एक ही चीज को एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जा सकता है, डेप्रिसिएशन और यू कैन ट्रीट इट एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एनी डेप्रिशिएबल एसेट। इसका मतलब ये होगा कि you do not take the depreciation on that asset, you treat this only, the repayment of loan is treated only as an application of income, that is advisable. Okay, thank you sir. Sir, one question which was asked अभी प्रवीण कुमार जी ने जो question पूछा था कि turnover for section 194Q will be inclusive of GST or not for turnover of 10 crore he is asking. He's asking again. अच्छा, okay. हाँ. So 10 करोड़ की लिमिट के लिए अगर आप अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड ही everyone is following the exclusive method, GST is always separately accounted for, तो आपका एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो टर्नओवर है उसे ही 10 करोड़ में कवर किया जाएगा, बिकॉज ऑलवेज जीएसटी इज अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, सो 10 करोड़ में जीएसटी का फिगर इंक्लूड नहीं होगा। However, as per section 145A उन्होंने कहा है, 145A उन्होंने ये जरूर कहा है कि your turnover should be inclusive of all taxes, but as per the regularly adopted accounting practice and as per the institutes, CA institutes guidance note, we can assume that since we are accounting it separately, so our turnover is excluding GST. So turnover में आपको 10 करोड़ में GST को include नहीं करना है। So question from Yogesh Kumar Gupta. Owners of TCS or TDS at the rate of 0.01% in case of sale of goods above 50 lakh is on supplier or receiver? वापस आप बताइए क्वेरी। Owners of TCS or TDS at the rate of 0.01% in case of sale of goods above 50 lakh is on supplier or receiver? इज ऑन रिसीवर। अगर 194Q में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजर की आती है,
If purchaser is deducting the TDS under 194Q, then seller is not required. दोनों में से एक कोई TDS या TCS करना, अगर purchaser ने 194 में कर लिया, then seller is not required to collect the TCR under 260C1H. राकेश आर्य सर, राकेश आर्य सर अनम्यूट करेंगे आप? सर अनम्यूट करेंगे आप? टंडन सर आप कोई क्वेश्चन? सर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? सर ये जो पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पर I have no question at all. Everything has Okay, been sir. explained in very much detail, and I am so happy that there is no question to be asked by me. And some of the things he had explained, I am really surprised to know the reasons. The only question which is I am still not satisfied. He had already answered the question, but I am not satisfied that we can assume that the turnover will not include GST. How we can assume word जगह थोड़ा सा मुझे लग रहा है. What is the basis and what is the logic and what is the legal situation on the basis of which we can assume that turnover will not include GST? And if so, whether 44AB purpose, for the purposes of 44AB also, should we not include GST in the definition of the turnover? If we are not 44, accounting yes, for GST in sales, GST is accounted for in a different manner, separately. So sir, as per, so this is very controversial. As per accounting practice, we are generally, as per accounting किसी का शायद मोबाइल पास में रखा होगा, दो मोबाइल आसपास रखे हैं, इसलिए आवाज इको हो रही है. हाँ, तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा और बहुत ही वेरी मच रिलेवेंट कि जो 10 करोड़ का टर्नओवर उसमें हमें जीएसटी इंक्लूड करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए. और मान लिया 44AB के पर्पस से हम 1 करोड़ की लिमिट डिसाइड करते हैं या जो 2 करोड़ की लिमिट डिसाइड करते हैं उसमें जीएसटी को इंक्लूड करना है अथवा नहीं करना है. सो एज पर द रेगुलरली एडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इफ यू आर सेपरेटली अकाउंटिंग फॉर द जीएसटी, then GST will not be included in the turnover. CA Institute का गाइडेंस नोट कहता है. किंतु टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ दिस 1 करोड़, CA Institute ने ये भी कहा है कि टू डिटरमाइन दिस लिमिट ऑफ 1 करोड़ आपको टैक्स ऑडिट की लिमिट डिसाइड करने के लिए तो इंक्लूड करना चाहिए. सो CA Institute हैज आल्सो टोल्ड दैट कि अगर आपको जीएसटी इंक्लूड करने के बाद अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हो जाता है, ऑन ए सेफर साइड, they have told that on a safer side you may do the audit as per 44AB. बट भाई जब हम हमारे क्लाइंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 44AD में चूंकि जीएसटी हम कलेक्ट करके एज इट इज गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते, दैट इज नॉट आवर प्रॉफिट पोर्शन. सो 145A जरूर कहता है कि आपको इंक्लूड करना, बट देयर आर सो मेनी जजमेंट दैट जीएसटी इज नॉट आवर पार्ट ऑफ द बिजनेस टर्नओवर, सो वी विल नॉट इंक्लूड इट. सो इन माय ओपिनियन हियर we will not include the GST in our turnover to determine this limit of rupees 10 crore. So हमें 10 करोड़ में ये GST पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए. Sir, may I interrupt you once again? Hello? Yes, yes sir. Hello? हाँ जी सर बोलिए. राकेश जी आप अनम्यूट हो गए सर. सर आप अनम्यूट हो गए हैं. सर म्यूट हो गए आप. Hello? हाँ सर. सर यू आर ऑडिबल. Hello? हाँ सर. आप अपनी बात बोलो. Hello? हाँ सर बोलिए. यू आर ऑडिबल. I am just asking. हाँ. Pending receipt माना गया है.
We had been taking the consideration of Chaurangi case. What we had been told, Chaurangi case had decided that the turnover will include any taxes collected by the businessman. On the basis of that, we always had been considering GST as part of the turnover for any purposes, either for 44AD or 44AB, and likewise, I presume it should be taken as for 194Q as well. Sir, and until CBDT come out with any such further clarification, we may आपकी जो advice that is also good, and on a safer side we should follow this. Thank you, sir. Thank you. Tandon sir, you were asking a question. मैं ये पूछना चाह रहा था रिगार्डिंग कैपिटल गेन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. कई बार केसेस में ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर पार्टनर की डेथ के कारण फैमिली मेंबर को रिड्यूस करते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली में ही एक पार्टनर एक मेंबर चला जाता है, दूसरा मेंबर आता है. तो उस सब केसेस में भी क्या कैपिटल गेन का क्या स्टेटस रहेगा? फैमिली मेंबर्स की, चाहे वो फैमिली मेंबर्स की पार्टनरशिप हो, मान लिया 4 फैमिली मेंबर हैं, एक फैमिली मेंबर कम हो गया तो भी इसे रिकंस्टिट्यूशन माना जाएगा. तो एक फैमिली मेंबर के बाहर जाने के कारण उस मेंबर को जो भी पैसा उसकी कैपिटल का मिलेगा, उस पर जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा, दैट विल बी रिकैलकुलेटेड एंड उस पर फर्म को टैक्स देना होगा. मान लिया हम एज्यूम करते हैं कि फर्म में गोल्ड का स्टॉक था, 4 पार्टनर्स थे, गोल्ड का स्टॉक की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपया. जिस दिन एक पार्टनर की डेथ हुई उस दिन गोल्ड के स्टॉक की मार्केट वैल्यू हो गई 1 करोड़ 20 लाख रुपए. तो 20 लाख में से 5 लाख का प्रॉफिट उस पार्टनर का था. तो जब भी वो पार्टनर की डेथ हुई उसको 5 लाख का प्रॉफिट उसमें स्टॉक में उसे देना होगा. दैट 5 लाख रुपीज विल बी द बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म. उसे सेक्शन 9B में इनकम माना जाएगा. स्टॉक इन ट्रेड को 9B में माना जाएगा. अगर कोई कैपिटल एसेट का गेन होता है तो कैपिटल एसेट को सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 में माना जाएगा. दैट विल बी ए डिम्ड गेन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म. उस पे फर्म को टैक्स देना होगा. Even though the goods have not been sold and the share will be transferred to the successor. आवाज कम आ रही है आपकी. Even though sir कि वो goods are not sold and the successor of the deceased will become the partner. हाँ, even though goods, because deeming fiction है ना, Meaning आपने goods सोल्ड नहीं किया है. Even if goods is not sold, this is a deeming fiction. सेक्शन 9B में इसीलिए उसको ट्रांसफर किया उन्होंने. पहले 45(4)A लाए थे, वो 45(4)A में उन्हें समझ आ गया कि डीमिंग फिक्शन यहाँ नहीं चलेगा, तो 9B में उन्होंने तुरंत शिफ्ट कर दिया. तो 9B में डीमिंग फिक्शन में इवन इफ goods is not sold and asset is not transferred, this will be a deemed capital gain or deemed income. Don't you think it's very harsh on such disease cases? आपको लगता नहीं हार्श है काफी? हाँ, so this is पार्टनरशिप फर्म्स में से वर्षों से क्या होगा कि टैक्स प्लानिंग चल रही थी तो उसको ब्लॉक करने के लिए उन्होंने ये चीज दिया. तो अब तो कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग में, एक भी घर में कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ, पार्टनर ने अपना आपस में रेशियो चेंज किया, सो दैट विल बी. और ज्यादातर ये चीजें उन्होंने रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन या जो गोल्ड वगैरह की जो एसेट्स हैं जिसमें वैल्यूज में ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए किया है. Any other question, Maniman? हाँ सर, एक तनप्रीत जी का क्वेश्चन है. EPF PSI डिसअलाउंस में 154 कैसे हो सकता है? अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट 143(1). 154 को कैसे करेंगे, प्लीज टेल. 154 देखिए, आपका डिपार्टमेंट का जो अभी 154 का सिस्टम फेसलेस नहीं हुआ है. सो आप अपने लोकल जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को 154 कर सकते हैं, या तो ई निवारण के थ्रू 154 अपलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन पोर्टल पर ई निवारण के थ्रू 154 एप्लीकेशन आप अपलोड कर दीजिए, या आप फिजिकली अपने लोकल एओ को 154 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. अदरवाइज 143(1)A का ऑर्डर ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड एज ए डिमांड नोटिस, और उसके अगेंस्ट में आप यू कैन डायरेक्टली
फाइल एन अपील। अगर आप डिले भी हो गए तो ड्यू टू कोविड पेंडेमिक आप कंडोनेशन ऑफ डिले लगा सकते हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले विल बी एक्सेप्टेड। Even those cases where the assessee has deposited the tax. आपने डिपॉजिट कर दिया टैक्स, हाँ डिपॉजिट कर दिया तो भी कर सकते हैं ना, आप डिपॉजिट कर दिया तो भी यू कैन कंटेस्ट द केस। यस, क्योंकि टैक्स डिपॉजिट करने से बस आपका ब्याज का मीटर बंद हो गया, बाकी पैसा जो जमा कर दिया दैट विल बी रिफंडेड टू यू व्हेन यू आप अपील जीतेंगे तो रिफंड होगा। और अपील सर्टेनली इन माय ओपिनियन यू विल सर्टेनली विन, बिकॉज एनी लॉ कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव और 143(1) में उनको अधिकार नहीं है। दिस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय वे ऑफ टेकिंग अप द केस इन स्क्रूटनी ओनली। 143(2) में। Sir, one more Yes. question from Praveen Kumar ji. If only capital is paid inclusive of his share of profit to any outgoing partner, is there any implication of Section 9B? Section 9B. अगर इफ एनी कैपिटल एसेट, उस कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेना होगी, उस कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू में अगर कुछ चेंज है देन डीमिंग फिक्शन विल बी एप्लीकेबल इवन इफ ओनली, मान लिया किसी व्यक्ति की कैपिटल बुक्स में 5 लाख रुपए है, उसे 5 लाख रुपए आपने पे कर दिया, किंतु जो 5 लाख पे किया उस 5 लाख के पैरेलल फर्म के अंदर अगर कोई मान लिया एक प्लॉट है जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख है किंतु उस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तो वो जो 45 लाख का जो गेन हो रहा है दैट गेन विल बी डीम्ड इनकम इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, चाहे आपने उसे 5 लाख ही पे किया है, बट डीमिंग फिक्शन विल बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 9B एंड फर्म विल हैव टू पे द टैक्स इवन इफ पार्टनर इज नॉट गिवन एनी मनी, क्योंकि पार्टनर को मनी नहीं दिया उससे देयर इज नथिंग टू डू विद। वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 में उन्होंने बोला है कि 45(4) में उन्होंने कहा है कि अगर आपने उसको एक्स्ट्रा मनी नहीं दिया देन देयर विल नॉट बी एनी टैक्स, पर इसलिए उन्होंने 2 सेक्शन एक साथ लागू किए 9B एंड 45 सबसेक्शन 4 कि कोई इधर बच गया तो इधर, दोनों चीजें बहुत थिंग्स आर पैरेलल। Sir, one more question. In case example, just given in partnership, will cost of holding gold be increased to that extent? हाँ, यस, क्योंकि उस पैसे पर अगर फर्म ने टैक्स भर दिया है सो द कॉस्ट विल इंक्रीज, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी डबल टैक्सेशन, सो बाय दैट अमाउंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। Sir, Praveen Kumar ji is asking, अभी जो question था capital gain वाला, उसमें ही how it will be accounted for in books of accounts, that section 9B, outgoing, giving money to outgoing partner. So that tax will be borne by that will be the cost of acquisition in the hands of the firm. फर्म ने अगर 5 लाख रुपए के कैपिटल गेन पर डीमिंग फिक्शन में टैक्स चुका दिया है, सो दैट 5 लाख विल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, क्योंकि जिस अमाउंट पर टैक्स चुका दिया दैट अमाउंट विल हैव टू बी कैपिटलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। 5 लाख रुपए फर्म की कैपिटल एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ईयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। Himanshu sir, please ask a question. सर अभी आपने देखा होगा कि कॉम्प्लायंस पोर्टल खुला था, लेकिन क्या हुआ कि वो 31 मार्च से पहले हम बहुत लोगों की कॉम्प्लायंस पोर्टल पे जवाब नहीं दे पाए। अब क्या वो रिटर्न अगर कुछ में मिसमैच था तो हमने कुछ लोगों की रिटर्न तो रिवाइज भी कर दी जहां हमें लगा हाँ गलती हो गई हमसे, लेकिन क्या है अभी कॉम्प्लायंस पोर्टल तो खुला हुआ है लेकिन रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। उस केस में क्या हो रहा है कि हमने जैसे कॉम्प्लायंस पोर्टल में कुछ डिमांड पे यस कर दिया तो उस केस में सर हम उसको टैक्स दे दें या वहां से डिमांड आएगी, क्या करा जाए सर ऐसे में? सर देखिए उसमें क्या होगा कि उसमें आपको 148 का नोटिस आएगा, आप टैक्स जमा करके भले रख दीजिए ताकि आपको ब्याज नहीं लगेगा। अगर अपने को लगता है कि इतना टैक्स मेरा सर्टेनली बन रहा है तो उतना टैक्स अभी जमा कर दीजिए तो ब्याज लगना बंद हो जाएगा। बाद में दे विल इशू 148 ओनली देन दिस रिटर्न्स विल बी फाइल्ड, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे, पर चालान पहले भर सकते हैं, चालान भर दीजिए। हाँ उससे ब्याज बच जाएगा हमारा, ये फायदा हो जाएगा बस, है ना सर? ब्याज बच जाएगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। और ये 148 की नोटिस अप टू असेसमेंट डेट 17-18 की डेट भी क्या एक्सटेंड होकर 30 अप्रैल तक हो गई है? 30 अप्रैल है अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 के जो भी नोटिसेज हैं, 17-18 या उसके पहले के जो भी नोटिस हैं 30 अप्रैल तक 148 के नोटिस आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आएंगे।
So we still have 20 minutes with us. Please आप और कुछ बताएं जब तक शायद और queries भी आ जाए. तो इन केस ऑफ 2-3 चर्चा इसमें कर लेते हैं जी. जैसे अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लिया कैपिटल एसेट नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, देन दैट रूरल एग्रीकल्चर लैंड की अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती, जनरली पार्टनरशिप फर्म के पास जो किसान होता है उसी के पास होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड जिस पर वो एग्रीकल्चर कर रहा है, देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो 9B में उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर सेक्शन 45 सेक्शन 4 में लग सकता है अगर उस पार्टनर को एक्सेस मनी दी जाती है। एक्सेस मनी भी नहीं दी जाती, जैसे पहले क्वेरी में बताया था उन्होंने कि जितने 5 लाख कैपिटल है हमने 5 लाख ही दिए, तो फिर उस पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे दोनों सेक्शन में टैक्स नहीं लगेगा। अनदर थिंग, कई सारे लोग हमारे क्लाइंट्स, जो एक जनरल चर्चा में कर रहा हूँ कि कई क्लाइंट्स रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं या सेल करते हैं, सेल करते समय कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, सो दैट कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 269 SS एंड 269 ST। 269 SS में लिखा है कि अगर कोई भी आप स्पेसिफाइड एसेट सेल करते हैं, स्पेसिफाइड एसेट में रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी कवर्ड है, तो इवन ए एग्रीकल्चरिस्ट कैन नॉट सेल द रूरल एग्रीकल्चर लैंड बाय टेकिंग कैश अमाउंट। तो 20,000 या उससे अधिक का कैश अगर कोई व्यक्ति रिसीव करता है, देन ही विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 269 SS का वायलेशन हो जाएगा, तो 271D की 100% पेनल्टी लग सकती है। मान लिया किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए कैश रिसीव किया, तो 5 लाख रुपए पर 5 लाख रुपए पेनल्टी लग सकती है। सर वहां पर इसी तरह ट्रस्टों ट्रस्ट के केस में, ट्रस्ट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर 10,000 से अधिक का कोई एक्सपेंसेस करते हैं, तो 10,000 से अधिक का कोई भी कैश एक्सपेंसेस करते हैं, दैट होल अमाउंट इज डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। तो ट्रस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी कोई भी पेमेंट या एक्सपेंसेस कैश पेमेंट 10,000 से अधिक अलाउड नहीं है, या विदाउट TDS अगर कोई पेमेंट करते हैं ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, देन दैट अमाउंट इज डिसअलाउबल अंडर 40A 1A, जिसे हम 40A IA बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली 40A 1A, 40A रोमन 1A। 40A 1A में 30% अमाउंट आपका डिसअलाउ हो जाएगा। मान लिया आपने 5 लाख रुपए का किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 5 लाख में से 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ओनली 70% को एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा, 30% को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि TDS के प्रोविजन का कंप्लायंस होना जरूरी है, और 269 SS और ST का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। कई सारे हमारे क्लाइंट्स लोग 269 ST वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, तो दैट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 10,000 से अधिक का कैश एक्सपेंस अलाउड नहीं है, 2 लाख से अधिक का कैश पेमेंट रिसीव्ड नहीं करना चाहिए। एंड नाउअडेज गोल्ड PMLA में कवर्ड हो गया, तो वैसे तो कोई क्लाइंट गोल्ड की कोई गलती नहीं करता है, तो 10 लाख से अधिक का गोल्ड अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष में बुलियन या ज्वेलरी सेल करता है, तो दैट इज कवर्ड अंडर PMLA है। उसे KYC लेना जरूरी है। KYC लेकर के 10 लाख से अधिक का कैश गोल्ड चेक से बेचा है, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सच। उसमें ऑलरेडी पैन नंबर का इनकम टैक्स एक्ट में रूल लिखा हुआ है कि पैन नंबर इज कंपलसरी। अगर 2 लाख से अधिक का आप इवन किसी भी क्लाइंट के साथ चेक ट्रांजैक्शन करते, इवन तो पैन नंबर इज कंपलसरी टू बी क्वोटेड। तो जब मान लिया आपका स्क्रूटनी का असेसमेंट चल रहा है, डिपार्टमेंट ने आपसे कोई सेल बिल मांगा, तो सेल बिल पर सेलर और बायर दोनों का पैन नंबर कंपलसरी है, इवन इफ ही इज ए कंज्यूमर। हालांकि GST के रूल के अनुसार ऑलरेडी हम बायर का GST नंबर डालते ही हैं, बट इफ दैट इज ए B2C सेल, B2C सेल में भी 2 लाख से अधिक के सेल पर आपको बायर का पैन नंबर डालना कंपलसरी है, बिकॉज इन 2 लाख से अधिक में एज पर सेक्शन रूल 114 जो सेक्शन पैन नंबर पेन कोटिंग के रूल्स हैं, उसके अनुसार पैन कोटिंग इज कंपलसरी, अदरवाइज 10,000 रुपीज की पेनल्टी है। सो ज्वेलरी के केस में हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ज्वेलरी अगर हमने चेक से भी सेल की है, 2 लाख से अधिक का चेक सेल है, इवन तो B2C कस्टमर सेल के अंदर भी पैन कोटिंग इज कंपलसरी ऑफ द बायर्स।
So there is a question. और जो 80G का डोनेशन है, 80G के डोनेशन में 80G का जो डोनेशन है, 80G में अगर इन काइंड कोई डोनेशन दिया, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर 80G. मान लिया किसी ने कोई हॉस्पिटल को एम्बुलेंस डोनेशन दिया, देन दैट एम्बुलेंस इज नॉट कवर्ड अंडर 80G. 80G में जो भी डोनेशन है, दैट शुड बी ऑफ मनी. मनी का डोनेशन है तो ही 80G में कवर्ड होगा. अदरवाइज इन काइंड डोनेशन इज नॉट कवर्ड अंडर 80G. बिकॉज 80G का हमें अगले साल से डोनेशन को सर्टिफिकेट देना है, डोनर को सर्टिफिकेट देना है. सो इन काइंड डोनेशन विल नॉट बी कवर्ड. सो नाउ yes, over to madam. Sir, there is a question from C. Sajal Agarwal. All the partners of partnership firm agreed to wind up the business operations and also agreed to transfer all liabilities and assets to a proprietorship firm, which is also in the name of a partner, with purchase consideration of 10 lakhs. How we will deal it with point of view of income tax? देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको दो चीज देखना है. अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो रही है, प्रोप्राइटरशिप बन गई उसकी, तो प्रोप्राइटरशिप मींस इट इज बिजनेस इज डिसॉल्व्ड. तो सबसे पहले फर्म में कैपिटल एसेट क्या क्या है और स्टॉक इन ट्रेड क्या है. कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू और स्टॉक इन ट्रेड की फेयर मार्केट वैल्यू आपको निकालना होगी. कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड की फेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो भी गेन आ रहा है, इंडेक्सेशन करना होगा. कैपिटल एसेट अगर है तो इंडेक्स कॉस्ट के आधार पे कैपिटल गेन निकालना होगा. स्टॉक इन ट्रेड में आपको बिजनेस इनकम निकालना होगी. जो भी कैपिटल गेन और इनकम आएगी, दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 9B. डीम्ड फिक्शन में वहां इनकम हो जाएगा. कैपिटल एसेट का कैपिटल एसेट में जो गेन आ रहा है, दैट विल बी योर कैपिटल गेन, और जो स्टॉक इन ट्रेड में है वो बिजनेस इनकम हो जाएगा. अब आपने बुक वैल्यू के अलावा भी, इस गेन के अलावा भी अगर कोई अमाउंट किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल अकाउंट के अलावा दिया है, मान लिया आपने 5 लाख रुपए उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है, उससे 15 लाख रुपए दिए, तो 5 लाख तो ऑलरेडी 9B में टैक्सेबल हो गया. तो 5 लाख का तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा. उसके अलावा भी आपने उसे 5 लाख रुपए और दिए, दैट 5 लाख रुपीज विल बी टैक्सेबल अंडर 45 सबसेक्शन 4 इन द हैंड्स ऑफ द फर्म. अगर आपने उसे मान लिया 5 लाख के बदले में केवल 5 लाख ही दिए, 15 लाख नहीं दिए, तो वो जो 5 लाख का डीमिंग फिक्शन में 9B में टैक्स लग गया, वो तो लग ही जाएगा. वो टैक्स पर सभी पार्टनर अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे. दिस विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन. So in this question only, Sajal is saying land in the name of partner and livestock is poultry farms only. Yeah. Sir, इसी question में Sajal ने ऐड किया है land is in the name of the partner and livestock is only poultry farms. Land is in the name of the partner. फर्म की लैंड इज इन द नेम ऑफ द फर्म. लैंड जो भी होगी फर्म की एसेट होगी ना. वो तो पार्टनर की इंडिविजुअल नाम की एसेट थी या इंडिविजुअल नाम की थी, तो भी फर्म की बैलेंस शीट में अगर कोई भी एसेट चल रही है, तो दैट विल बी द कैपिटल एसेट ऑफ द फर्म ओनली. एंड लाइव स्टॉक है, जो लाइव स्टॉक इज नॉट ए स्टॉक इन ट्रेड. लाइव स्टॉक इज नॉट योर स्टॉक इन ट्रेड. लाइव स्टॉक इज द कैपिटल एसेट. तो उस लाइव स्टॉक की भी हमें फेयर मार्केट वैल्यू मालूम करना होगी. So there is a question whether demand of 2009-10 can be adjusted against the refund of assessment year 2021. No assessment done and no demand uploaded on e-filing portal as return filed manually. If adjusted, what remedies to assessee? इस तरह के केसेस में देखिए सेक्शन 245 में लिखा है कि डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन देकर एडजस्ट कर सकता है, पर इंटीमेशन देकर भी ओनली पहले अगर आपने असेसमेंट ईयर 2009-10 में भी टाइम लिमिट हुई था, उस समय 2 इयर्स का था. 143(1)(a) की इंटीमेशन की 2 इयर्स की टाइम लिमिट थी. अगर आपको डिपार्टमेंट ने विद इन 2 इयर्स को इंटीमेशन नहीं दिया, देन दैट डिमांड इज इनवैलिड. तो वो डिमांड वो आपसे रेज नहीं कर सकते. सो आपको ये कंटेस्ट करना होगा कि हमें कोई इंटीमेशन प्राप्त नहीं हुआ. सो दैट डिमांड रेज्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2009-10 इज इनवैलिड. सो डिपार्टमेंट जब तक आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं बता देता है या स्पीड पोस्ट सर्व का कोई नोटिस का प्रूफ नहीं देता है, दैट डिमांड इज इनवैलिड. सो दे कैन नॉट एडजस्ट दिस डिमांड.
There's a question from Amod Agrawal. ई निवारण में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ई निवारण में आप उसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं. Okay, sir. A question is, sir, in case of TDS under section 206 AB, if the deductee or collectee has not filed 2 years ITR, TDS will be deducted at double the rate or 5%. But if the person is 19 years old, he was liable only to file 1 year ITR after becoming major, then whether TDS TCS will be at double rate 5% or not. Interesting one. He was not liable. उसने 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है. If he was liable and has not filed, then so अगर वो 18 साल से छोटा था, then he was not liable. तो उसका 1 साल का ITR का ही काउंट किया जाएगा, 2 साल का डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा. He will not be deemed to be defaulter for 2 years because he was not liable at that time. डबल द रेट से भी नहीं डिडक्ट होगा फिर टैक्स. नहीं डिडक्ट होगा. Sir, next question. Has only the threshold limit for 44AB has been increased from 5 crores to 10 crores, or is there any change in the condition with respect to not more than 5% of receipts and payments being in cash, which was introduced in the last budget? Only the limit of 5 crore has been changed to 10 crore, and there is nothing, there is no else change. So 5 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ किया है, बाकी 5% कैश की जो लिमिट जो कंडीशन असेसमेंट ईयर 21-22 Sir, in the previous question, Amoji is saying, but how can we prove whether he is liable to file ITR or not? If he is a minor, भाई 18 years से छोटा अगर है तो उसके his father will be liable to file his ITR. If any person is not a major, अगर 18 साल से छोटा है, then अगर उसकी कोई इनकम भी है, even if there is any income, his father may be liable to file his ITR. That minor is not liable to file his ITR. राकेश आर्य सर. हाँ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन मेरा ये था, सेक्शन 45(4) में जो आपने सर बताया है, उसमें एक फॉर्मूला दिया है A is equal to B plus C minus D, और C की जो डेफिनेशन दी है उसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट रिसीव्ड. जब रिसीव्ड वर्ड है तो क्या डीमिंग फिक्शन न मिलने पर भी, यानी कि मेरा 10 लाख रुपए कैपिटल में था विद प्रॉफिट, 10 लाख रुपए उसको दिया, कोई एसेट नहीं दिया, तो भी क्या डीमिंग फिक्शन लगेगा? चूंकि वर्ड यहाँ लिखा गया है फेयर मार्केट वैल्यू दी एसेट रिसीव्ड, वो डीमिंग फिक्शन आएगा. डीमिंग फिक्शन इज देयर सर. रिसीव्ड नहीं हुआ तो भी लागू होगा, रिसीव्ड नहीं हुआ तो भी लागू होगा. Then what is the significance of the word received? चाहिए anyway, ठीक है सर. रिसीव्ड माना जाएगा जिस ईयर में, रिसीव्ड मींस कि जिस ईयर में आपने पार्टनरशिप का रेशियो चेंज हुआ है या पार्टनर बाहर हुआ है, पार्टनर अंदर आया है, उसे उस ईयर को रिसीव्ड माना जाएगा. उस ईयर में पैसा रिसीव्ड माना जाएगा. इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इन द ईयर इन व्हिच द partnership ratio has been changed, या partner has come or partner is gone out. Right. Thank you, sir. Thank you. Sir, Moji is saying again, he may also be 30 years old, but income is less than 2,50,000. Then, so income, if income is less than 2,50,000, even though he was not required to, if he was required to file the ITR, but he did not file the ITR, and TDS in every last 2 years was more than 50,000 per year. पिछले 2 साल में उसका 50,000 से अधिक का TDS डिडक्ट भी होना चाहिए, and he was liable to file income tax return. तो liable नहीं था. He was not liable because his income was less than, मान लिया उनकी एज 30 साल है, पर 2.5 लाख से कम इनकम है, so he was not defaulter. He will not be defaulter. So उस पर वो हायर रेट 206 AB 206 CC लागू नहीं होगा. So next question, ITR of AY 1920 processed and refund status is credited in bank account, but by mistake bank account number for refund mentioned in ITR does not belong to the concerned SEC. What remedy is available?
एसएससी वापस बताइए एक मिनट। सर ITR ऑफ असेसमेंट ईयर 1920 प्रोसेस हो चुकी है। रिफंड स्टेटस इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, but by mistake bank account number for refund mentioned in ITR does not belong to the concerned assessee. What remedy is available? So that problem can be solved either through e-निवारण पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाना होगा, e-निवारण पे सॉल्व नहीं होता, then you may have to file the CP ग्राम, PMO का जो हेल्पलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल e-निवारण फाइल कीजिए कि सर ये पैसा गलत अकाउंट में चला गया। If that is not solved through e-nivaran, then we may file the CP gram application, that will be solved. So last question, bank transfer the TDS of husband on the pen of wife after death of the husband. Should we claim credit of TDS in the return of wife? The turnover is rupees 2 crore in the form of husband. हस्बैंड की डेथ हो गया। हाँ जी सर। हस्बैंड की डेथ हो गया और हस्बैंड का जो टीडीएस है वो वाइफ के इसमें क्लेम करना है। एंड हस्बैंड एंड टर्नओवर ऑफ द फर्म ऑफ द हस्बैंड इज 2 करोड़। यस सर। So the wife should be legal here. So wife is if wife is legal here, so wife is responsible. Wife को वो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो भी अपने इसमें इंक्लूड करना होगी। Then she will be allowed to claim the TDS as per section 199. Section 199 and rule 37B(a) के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इनकम में इनकम ऑफर करेगा, only he can claim the TDS. So if wife is responsible to include that income, then she can claim the TDS also. Okay. Thank you sir. अभी वैसे तो अभी हम और रुके 5 मिनट तो और आएंगे questions, but आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, and I will request KM Tandon sir, please take the mic. Thank you, Chairman ma'am. Sir, vote of thanks से पहले मेरा क्वेश्चन ये था with reference to section 269(f), if purchaser and sellers both are agricultural and transaction is for sale of agricultural land, then cash transaction may be done or not? Sir, section 269 SS में लिखा है कि if the both person are agriculturist and they are having no any other income liable to tax, no any other income liable to income tax, तो मतलब सेविंग अकाउंट का ब्याज भी लाइबल टू इनकम टैक्स तो है। अगर कोई भी दो एग्रीकल्चरिस्ट है, उनको ओनली एग्रीकल्चर इनकम है, दे आर नॉट हैविंग एनी सेविंग इंटरेस्ट और एनी रेंटल इनकम और एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, देन ओनली दे आर covered under exception of 269 SS. Both should be purely agriculturist and no saving account. So saving account का ब्याज तो हर एक को होता है, तो सेविंग अकाउंट का ब्याज है, then they are covered under 269 SS, so they cannot accept cash. Even though if their income, other income is below minimum amount chargeable to tax. तो भी, because that income is liable to be covered under income tax. Liable to tax नहीं है, बट वो इनकम तो टैक्सेबल, चार्जेबल टू टैक्स इन इनकम टैक्स तो है। वो 2.5 लाख से कम है या ज्यादा, वो एक्सेप्शन नहीं है। Thank you very much, sir. On behalf of all the members of Moradabad branch of CIRC, we thank you for sharing your words of wisdom and enlightening us. आपका deliberation पहले भी हम आपको physically भी सुन चुके हैं, now virtually also. It was really an educative and informative session. It was thought-provoking also. On behalf of entire branch, I place a vote of thanks to you. Thank you very much. Thank you. Thanks to all. Also सभी को बहुत बहुत धन्यवाद for a good interactive session. Thank you very much. Okay. Thank you Rajesh Mehta sir. Thank you Rakesh Arya sir. Thank you KM Tandon sir. Bye. Thank you. Bye sir. Thank you so much.